Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mawa Shajaz. You're watching me on my YouTube channel. You're watching me on the Expat Story. And with me, as always, talking about Pakistani dramas is Sadaf Haider. Sadaf, Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? Walaikum salam. How are you, Mavish? I'm Good, good. good. Alhamdulillah. I know you're still traveling, so thank you for making the time for me. It's always a pleasure. So, sorry guys, बीच में I was not well, तो थोड़ा डिले हो गया था हमारी चैट का. बट थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग एज ऑलवेज योर लॉयल फीडबैक. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपका फीडबैक, सो कीप इट कमिंग. सदफ, लॉट्स ऑफ स्टफ टू डिस्कस. रमजान ड्रामे शुरू हो गए हैं. Hmm. आपने कैच किए थोड़े से? वर यू एबल टू सी? I did. Obviously, देख मगर प्यार से. देख अभी जरा, देख जरा प्यार से. अच्छा देखो ना, कितना हाँ उन्होंने जैसे मेरे जैसे स्लो माइंड्स के लिए एक पहेली बना दी है ना. हाँ, यू बोलना ही मुश्किल हो ऑटोमेटिकली गया है. से देख मगर प्यार से, राइट. हाँ, because that's what the slogan is. सो जी, and then आई डिड सी इट, आई डिड सी इट. आपको कैसे लगा? हाउ डू यू फाइंड इट? uh we'll come to that. I didn't like any Ramzan drama so far. I surprisingly the Express wala छुप छुप के और चुप चुप के, आई डोंट नो, आई थिंक चुप छुप छुप चुप के. के, आई थिंक, या. हाँ, तो वो थोड़ा बेहतर था क्योंकि वो बहुत ओटीटी था. आई थिंक द ट्रिक इज टू गेट इट एज ओटीटी एज पॉसिबल, सो that was a bit consistent, I think, and kind of was delivering what we thought it was deliver. I think I'm still burnt by last year. Like Dilwali Gali mein is still traumatizing to me. No, please, never again. So far I'm not feeling it. I think I like the current dramas more. But जैसे आपने हमारी offline conversation भी यही हुई थी कि it takes time to get to the rom-coms, है ना? Yeah, I think it's difficult, particularly हम लोग थोड़े से jaded होते हैं because we are obviously हम लोग थोड़े से cynical हैं. हम इतने ड्रामे देखते हैं और फिर हम्म. criticize करते हैं और analysis और बारीकियां. हम थोड़ा बाल की खाल में घुसते, मैं और आप तो घुसते भी ज्यादा हैं बाल की खाल. नहीं, बट एनी क्रिटिक डज, एनी क्रिटिक वर्थ द सॉल्ट. यानी फिर आप ना कहें कि आप रिव्यूअर या क्रिटिक हैं, फिर ना, फिर ट्रू. आप ना कहें. सो दैट्स द होल पर्पस. और जो फैंस होते हैं, when they eventually when we get around to enjoying it, तो वो फिर वो मजे से सुनते भी हैं हम्म. डिस्कशन, they take part in it. हाँ, और बिकॉज लेकिन हमारी तो वो मजा ही, हमारी जो डिस्कशंस कमेंट सेक्शन में हो रही होती है उसमें तो बड़ा मजा आता है. फॉर श्योर, फॉर तो श्योर. but I thought it was very slickly made. हम्म. And I विच have वन? sorry, uh, देख जरा प्यार से. देख जरा I- प्यार से. ओके. थोड़ा सा in the beginning it was like क्या कर रहे हैं as usual, हम्म. because I'm in anti mode now. और जो आपकी आम पब्लिक जो देख रही है वो तो देख रही है भाई, हमजा सुहेल छलांगे मार रहा है, कभी एक कुर्सी के ऊपर से, कभी वो छतों से उतर रहा है, छतों से नहीं, आई थिंक कई गेट से. एंड इन द हम्म. बिगिनिंग एनीबडी हु वॉच्ड फेरी टेल वुड से ये क्या हो रहा है. आई रिमेम्बर हम्म. माय डॉटर वाज सेइंग कि अच्छा वो ड्रामा जिसमें वो लड़की बहुत बोलती है about हम्म. fairy tale, and I'm in love या. with fairy tale. So हम्म. I have high hopes of Dekh Zara Pyar Se. हम्म. We've got a good cast, and the story, I think usually Saima Akram Chaudhary का है ना, जी जी right? जी. उनकी थोड़ी सी jerky होती हैं beginnings. You know हम्म. the short scenes, short dialogues that happened in Neeli Koti as well. But this time, Zara, I think Ali Hassan is good at good director. So he हम्म. took it and he smoothed it out, right? So itna jerky nahi the wo scenes. And I हम्म. think once we get to know what's going on, unka bhi kasoor nahi hai. They have to get out a lot of information and establish characters and people. जो ये format hai very हम्म. quickly. And I हम्म. wish they would get out of that because there's a way of rolling this thing out. जो हम्म. हमारे पुराने writers करते थे ना, I don't know why Ramzan dramas have to be so immediately everybody knows as to the first episode what's going in. दो तीन episodes में दे सकते हैं, and that's what makes them a little jerky. Okay, what was okay? So Suno Chanda is your favorite bench, it's your gold standard for a good Ramzan drama, right? I think so. Chupke, I think even Chupke more. Chupke. But Yeah. yeah. So, and again, these are Saima Akram Chaudhary scripts. So, for me, it's again Saima Akram Chaudhary, but it's not Chupke Chupke or Suno Chanda. For me, it's Ish How to, Jalebi and oh, Chaudhary and Sons के बीच का एक tie है. I think I would probably give it slightly bit to Chaudhary and Sons because Aiza was brilliant in it. Like Aiza was
fantastic in it. And I think that entire story was like wound together. All the characters had their arcs and bases and all. There were no sudden jumps to certain characters being introduced and That everything. is a good point. They were a lot smoother and हाँ quickly जलेबी and हाँ। script तो तो कमाल अगर अच्छा, इस जलेबी में इवन दो बाद में कैरेक्टर्स आए थे, लेकिन फिर उनका अच्छा आर्क था, लॉजिकल आर्क था, तो वो इसलिए था अब अच्छा। लेकिन लेकिन चौधरी एंड सन्स में डे वन से फर्स्ट एपिसोड से इट सेट अप ऑल द कैरेक्टर्स एंड देन इट स्टेड विद दोज कैरेक्टर्स थ्रू आउट। सो दैट्स फ्रॉम एपिसोड वन टिल रमजान वन टिल रमजान के चांद रात या चांद ईद वाले दिन तक मुझे था कि अच्छा इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा। और आई थिंक एक चीज़ जो हमारे रमज़ान ड्रामे, एंड गाइज हम इसको इकट्ठे ही पूरा सारे रमज़ान ड्रामों का एक ही रिव्यू काइंड ऑफ कर लेते हैं, कि आई थिंक रमज़ान ड्रामों की कहानी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोगों को समझनी चाहिए, वो लिखने वालों को और चैनल्स वगैरह को भी, प्रोडक्शंस वगैरह को भी समझनी चाहिए, कि आपकी जो मेन कहानी है ना, वो चाहे आप अंसाम्बल ही बना रहे हैं, लेकिन आपका सेंट्रल कैरेक्टर एक होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये। इसलिए क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे चौधरी एंड सन्स में या इस जलेबी दोनों में बहुत अच्छी बात क्या थी, जो आपका सेंट्रल लव ट्रैक था या जो आपका सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट थे ना, उनमें आप इन्वेस्टेड थे। मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मुझे ये दो ड्रामे बहुत साउंड ड्रामे लगते हैं ये। इसी तरह आई हाँ इसी हाँ इसी तरह अगर आप फेरी टेल को भी देखें, या आप और भी कोई भी ड्रामा उठा लें, कॉमेडी वॉमेडी जैसा भी ड्रामा उठा लें, अगर आपका एक किरदार पे फोकस रहता है ना, तो आप उसकी जर्नी ट्रैक करते करते करते, अगर आप आखिरी वक्त तक वो कहानी लिखने वाला अगर उस किरदार के साथ इंसाफ करता रहता है ना मुसलसल, तो वो ऑडियंस उसके साथ चलती है। एक्सेलेंट ड्रामाज अगर हमें याद आए पाकिस्तान के जितने भी बने हैं, मोहम्मद देख लें आजकल जो चल रहा है, इसके अलावा पहले ये रकीब से की बात कर लें। रकीब से की ब्यूटी ये थी कि जो आपके मकसूद साहब थे, वो पहले मोमेंट से लेके आखिरी मोमेंट तक वो बहुत हद तक पिवटल थे। और वो जो बच्ची थी इकरा अजीज का जो रोल था, हदीका कियानी का जो, ये सारे कैरेक्टर्स बहुत कंसिस्टेंट रहे पूरे टाइम तक। दूसरे कैरेक्टर्स आते जाते रहते हैं, हमारे कैरेक्टर्स का क्या होता है कि हमारे, मुझे लगता है चैनल्स के साथ क्या होता है, उनकी स्क्रिप्ट आती है, फिर वो कोई एक इन्फ्लुएंसर पकड़ के ले आते हैं, या कोई बच्चा पकड़ के ले आते हैं, या कोई एक्टर ऐसा आ जाता है जो कहते हैं जी मेरा रोल बढ़ाओ, या डायरेक्टर कहता है यार ये इसके साथ हमने आगे इवेंट भी करना है। होता है हाँ, कि मेरा रोल पढ़ाओ, ये भी होता है। ये भी होता है, आई क्यों नहीं एम होता है। थिंकिंग चलो आम ड्रामे में तो हो जाए, कोई स्टेब्लिश्ड एक्टर हो, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर आके ये कहे तो उनकी हाँ, इतनी क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। कांट अच्छा, बिलीव इट। और ये भी अभी किसी ने ट्वीट भी किया था कि जी साइमा करम चौधरी ने कहा है उनकी स्क्रिप्ट चेंज हुई हैं, और खलील रहमान कंवर की स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती है। एक और भी बात मैं करेक्ट कर दूं, सबकी स्क्रिप्ट चेंज होती हैं। खलील साहब बातें करते ज़रूर हैं, तो माजरत के साथ खलील साहब की स्क्रिप्ट में भी खलल दिया जाता तो है। तभी तो वो नाराज हुए हैं हाँ, वो कितने। नाराज भी होते हैं इस बात पे। और स्क्रिप्ट्स जो होती है ना, वो कोई आपने अगर नॉवेल लिखना है, लिखा है, तो हाँ वो नॉवेल उसी फॉर्म में रहता है। बाकी टेलीविजन पे तो आप किसी से भी, आई एम श्योर सदफ यू नो दिस, एंड एनीबडी हु हैज स्पेंट इनफ टाइम कवरिंग पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म, और एनी एंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म, पाकिस्तान के अंदर ये लाजमी होता है कि सेट पे कभी कभी डायलॉग बदले जा रहे होते हैं, सीन्स बदले जा रहे होते हैं। इंडिया में ये नहीं होता बाय द वे। इंडिया में ये मूवीज की बात कर रही हूँ मैं, सेट टीवी का मुझे इतना आइडिया नहीं है। फिल्म्स का आई कैन गारंटी यू दिस, के फिल्म्स में इंडिया में बहुत कम जो प्रॉपर प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वहाँ पे एक दफ़ा जब वो बाउंड स्क्रिप्ट पूरी स्टाफ और टेक्निकल टीम को चली जाती है, फिर वो चेंज नहीं होती, फिर वो चेंज नहीं होती। देखो मुझे गुस्सा चढ़ता है कई बार ना, कि यू कैन टेल कि ये एक एड ऑन ट्रैक है, या यहाँ ना डायलॉग पता चल जाता है। बट इफ यू लुक एट सम ऑफ आवर ड्रामास, आई मीन देख जरा प्यार से। वो हाँ। जो हमजा सुहेल और वो जो बच्चा उसके साथ था उसका, आई एम नॉट श्योर, आई अपोलोजाइज, मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, लेकिन जो उसका कजन बना होता है, हम्म राइट। So the dialogues they were talking, they're not very realistic for two young men of Gen Z. एंड वो आई रिमेम्बर फरहत इश्तियाक बहुत देखो हमारी टॉप की राइटर है, टॉप की हम्म राइटर, वो इतनी हम्बल है कि उन्होंने कहा था देख सदफ, ये जो कभी मैं कभी तुम है, आई वुड लव अ राइटर्स रूम। हमारी हम्म इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, सो हम्म बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ यंग मैन हु इज मे बी 30 younger than me, वो उसकी आपस में उन लड़कों की एक वो टेक जीनियसेस है, हाँ, कॉन्वर्जेशन जो हो रही है। how they will speak to each other, relate to each other. अब हम्म जैसे मैं सुन रही हूँ, yes, it is an idea of the way perhaps a mother of my age
माइट थिंक के दो लड़के बात करते हैं, यू नो, वेरी हाँ। क्लीन, वेरी ऐसे, बट राइट। एंड आई वाज नोटिसिंग, बट इट डजंट मैटर इन रमजान रोम कॉम, क्योंकि दिस इज लाइक क्लीन कट फैमिली फन, वो एक फॉर्मूला नहीं हम्म। होता, बल्कि हाँ युमना वो स्टूड आउट। आते युमना जाते, stood out। हाँ आते जाते चले जाते हैं वो। तुम लड़के भी ना, जो एक स्क्रिप्ट आई है वो फसी बारी खान की स्क्रिप्ट है, यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया, आयना आसिफ उसमें हैं, और भी फायजा हसन हैं। तो वो स्क्रिप्ट, उसके अंदर जो डायलॉग्स हैं ना, वो खालिस फसी बारी खान के डायलॉग्स हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं। और तुम तो मुझे ये खिलाते थे, तुम तो मुझे ये कहते, फायजा हसन तो है ही बिल्कुल एक फसी बारी खान की, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक बहुत ही जबरदस्त जो एक खाका है फसी वाली खान की स्क्रिप्ट्स में जो एक होता है, तो फायजा हसन उसको बड़ा प्यारा प्ले कर रही हैं। सो कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जिनका एक खास फ्लेवर होता है। अभी मुझे लगता है कि एवरीबडी इज इन अ वॉनबी सुनो चंदा मोड। एंड जब साइमा अकरम चौधरी को उन्होंने इस जलेबी दिया और चौधरी एंड सन्स दिया, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं बनाए, आप सुनो चंदा ही बनाए हैं, आप सुनो चंदा ही बनाए। एंड व्हाट आई सीन देख जरा प्यार से इज दिस वियर्ड मिक्सचर ऑफ सुनो चंदा एंड मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत का एक वर्जन दिख रहा है विच आई, थोड़ा सा जरा फिल्मी, what was that one with Dhananir and वेरी फिल्मी, वेरी वेरी फिल्मी, फिल्मी। उसका भी बड़ा झलक है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं। एंड आई वॉजंट लेकिन फॉन्ड ऑफ इट, आई yeah, वॉजंट फॉन्ड I ऑफ इट। was, but लेकिन just because I'm not fond of हाँ something, हाँ I can हाँ। recognize a good Oh product. yeah. Yeah, yeah, yeah. So this conversation is basically a very critical conversation. So let's, like, before the fans come at us and फिर वो Reddit पे हमारी ये क्लिप जाएगी कि देखे सदाफ एंड महविश आर so biased against Hamza Sohail or Yumna Zaidi. We're not. I think that out of all of these, the slightly better script is Tum Ladke Bina and Chup Chupke, which is so surprising because they're smaller, मोर थूक से तले हुए पकौड़े वाला प्रोजेक्ट हैं दोनों के दोनों, बिकॉज वो दोनों बहुत मतलब बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट्स पे लग रहे हैं वो। हाँ नहीं, मुझे नहीं लग रहा उन पे ज़्यादा पैसा लगा है दोनों प्रोजेक्ट्स पे। बट फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, मच बेटर देन द मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आज की तारीख जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन द 20th of Feb, तो फसाना मार्ट का ग्रीन पे स्टार्ट होने वाला है। तो वो भी देख लेंगे कि वो कैसा, हाउ डज दैट को, इट Okay, स्टार्स। I'm gonna flip that. I will say कि देख मगर देख जरा प्यार से was my favorite. ओ या। Maybe because I got to watch the whole proper episode. Let's be fair, right? But I did like it. I think it was a little jerky, लेकिन as I've said, शुरू में ऐसे ही होता है. But Yumna actually stood out because she brought a lot of Of grounding in it. course. Bhai, Yumna, Hmm. Yumna will stand out anywhere because Yumna is that kind of a performer. Not always. I remember in the past, मुझे इतनी भी पसंद नहीं थी when I first started. Then Hmm. she's one of those people that has made a place in my heart No, because no, I was role after always role after role, na? I was always watching this girl, like the way that I was watching Sajjal, like Sabaa, Mehwish, Mahira, ये तो बस मतलब ये बड़े स्टार्स थे। ये और ये पहले के भी थे ना, मतलब हम बहुत अरसा हो गया, मैं 12-15 साल हो गए इन्हें देखते हुए। लेकिन युमना और सज्जल और ये बहुत छोटी थी एक तो जब आई थी, और फिर उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, तरह तरह के रोल्स उन्होंने किए। जब मैंने उल्लू बराए फरोख्त नहीं देखा था, जब मैंने इस तरह के दो चार ड्रामे और देखे थे युमना के, आई वॉज लाइक ओ दिस गर्ल इज समथिंग एल्स। एंड Because she's a very talented actress in both a technical sense and वो जो एक star वो power होती है ना, कमर्शियल, हाँ। that that and she हम्म। started the star thing a little bit later. मुझे हमेशा ना वो ऐसे लगती थी कि Actually, that was the time. That yeah, was the time when I didn't like her. I didn't है like ना? her in Raze, yeah, Raze Ulfat, and like, हम दोनों रोते थे, वापस आ हाँ जाओ पुरानी अल्लाह होना। अल्लाह, मैं सोची थी, मैंने कहा ये क्यों कर रही है। लेकिन अब आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई। और मैं ये सबको कहती हूँ कि भाई ये जो उसने, वो बड़ी स्मार्ट थी, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थी, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि द वे टू टॉप स्टारडम इज डू दीज प्रॉब्लमेटिक क्रैपी ड्रामाज लाइक तेरे बिन। अपनी वो रेंज आपने दिखानी होती है ना ऑडियंस के मुख्तलिफ कोई रेंज वेंज नहीं होती। वो से। रेंज रेंज वेंज कोई नहीं होती, बस किचन ड्रामे होते हैं, इनसे आपको लॉन के एड और कैंपेन मिलते हैं। आप बस छोड़ दे सब। well, yeah, maybe you're right there. I won't argue with you, but I will say कि देखो एक wider audience को appeal करने के लिए ना, you sometimes just have to dumb yourself down and go for the problematic stuff, right? Yeah, we So, will talk about the problematic and stuff. I worry about Fasi Bari Khan's scripts because they are too real.
वो Hmm. ना he cannot resist putting in that cynical kind of sarcasm. Yeah. He knows what real people are like, Yeah. right? Yeah. And वो देखा ना, वो दोनों लड़ रहे होते हैं वेइंग मशीन के ऊपर, Hmm. and that kind of stuff you won't find in a Hum TV rom-com. Everybody's perfect, everybody's airbrushed. उनकी जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं वो एयर ब्रश प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बदतमीजी तमीज से करते हैं, राइट? Hmm. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक, बट आई वरी दैट for Ramzan, you either make it wacky or make it kind of cute and surreally beautiful. I don't know. I'm kind of worried about this script. Let's see, right? I'm actually not. I'm on the opposite side because I feel like I really liked it because I was a bit happy to watch it because I think that sometimes what's happening, and maybe it's because we're watching like Meri Zindagi Hai Tu, and अभी हम आएंगे इश्क में तेरे सदके के ऊपर. I think वो जो इतनी brainless, stupid, problematic, terrible, lack of any real soul वाली जब हम चीज़ें देखते हैं, तो जब एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही विटी जुमला या एक ज़्यादा डीप सोचा हुआ कैरेक्टर सामने आता है ना, तो फिर मैं कहती हूँ यार ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो मज़े की चीज़ है. तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में पाकिस्तान टेलीविजन इन दिस वीक जो मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कुछ चीज़ें देख के, और कहीं मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई. और सदफ, स्पीकिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, लेट्स टॉक बिफोर लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे. मेरी जिंदगी है तू, सदफ. What can I say? I mean, like, can we finish the Ramzan या dramas? या श्योर, आई एम Because डन विद इट, प्लीज. I have a हाँ. rant coming on. I'm just gonna say with the Ramzan dramas, like they're a sugar coated almond जो आप ना सहरी के sorry इफ्तार के बाद खाते हैं, हम्म. right? हम्म. So with Fasi Bari, he writes so deeply. I just hope sometimes वो थोड़े से edge पे जाते हैं, and I love his work, right? हम्म. जहाँ वो उन चीजों का मजाक उड़ाते हैं जिनका कोई जरूरी नहीं है मजाक उड़ाना, लेकिन जब वो टारगेट करते हैं हमारी मुनाफकतों को और झूठ को और द हिपोक्रेसीज ऑफ सोसाइटी, भाई ही इज बेसिकली अ सटायरिस्ट, ही इज बेसिकली अ सटायरिस्ट ना. तो दूसरी साहब की बेवा हो गई, बंद थ्रोट की नीलोफर. इट्स ऑल कटिंग सटायर एंड टू अंडर एंड आई वांट टू, दिस इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली दैट you've raised, because I think that a lot of the new kids who are maybe new to his work haven't seen his older work. Please watch घिसी पिटी मोहब्बत number one, Oh my and God. कुद्दूसी साहब की बेवा and बंद थ्रोट की नीलोफर. एक सटायरिस्ट का काम जो होता है ना, वो लिटरल सेंस में बात कभी भी नहीं करता. उसके लिए हर किरदार, माशरे की हर रियलिटी एक कैरिकेचर होती है, यानी Hmm. एक मजाक उड़ाने का सब्जेक्ट होता है. वो इंसान की हर चीज़, माशरे की हर चीज़, माशरे का हर पहलू उसके लिए इट्स समथिंग टू पुल डाउन, ब्रेक डाउन, अटैक विद ह्यूमर. He's सो not wanting to make you comfortable. नो, वो आपको नॉट एट ऑल. comfortable नहीं रखना चाह रहे, नॉट एट ऑल. वो वो आपको जहां आप challenge कर रहे होते हैं हाँ, एक एक आप डायलॉग जहां, और एक एक किरदार के साथ ना। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जहां कंफर्टेबल होंगे, आप जहां मोमेंट आपको लगेगा कि अब यहाँ हर चीज ठीक होने वाली है, वो आपके पैरों के नीचे से कारपेट खींच लेगा, और आप जब गिरेंगे तो आपके ऊपर हंसेगा. सो ये सटायरिस्ट का काम ये होता है. एंड आई थिंक थैंक्स टू सोशल मीडिया वी आर नॉट यूज टू कटिंग सटायर एनी मोर. एक तो वो एक बहुत मतलब हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, हर चीज़ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस के प्रिज्म में आ जाती है. तो लेकिन आई एम स्टिल ग्लैड दैट पीपल like Fasi Bari Khan are returning to television. We need more writers like him who are, I think, who are a little bit okay to push the envelope, because Can and you, I, can you imagine Fasi Bari Khan writing something like Muamma? अगर उनको खुली छूट और दी, मेरी जिंदगी है तू, write something, yeah, मेरी जिंदगी है तो if he got his kind of like his typewriter tentacles in on, it. yes, उफ, क्या बात होती. I हाँ. mean, the भाई मैं man is चाहती हूँ कि amazing. फसी बारी खान जो है वो कामयार का एक नक्शा खींचे. Yes, please. I'd like to see something like that from him आई because वुड. I think he would grab it from the other end and he would, I And think it hang it would be upside down. eye-opening, And eye-opening, eye opening, and hang it upside down in the chalk, you as know, it deserves. as it As it deserves, as deserves. it deserves. Like, So that's our Ramzan dramas. Just one question, and this is for you and the wider audience. हम एक फॉर्मूला बन चुका है रमजान ड्रामास. आई डोंट अब मैं कंप्लेंट्स करने लगी हूँ तो right, कि व्हाई इज इट राइट कि रमजान ड्रामा है ना कि एक फैमिली है, एक पेट्रियार्क या मेट्रियार्क होगी जो सबको लाइन में रखते हैं, फैमिलीज
are loving, but they're a problem. And, I understand that warm, fuzzy feeling, but there are other topics that we can, tease, we can explore. I mean, one of my Hmm. favorites, हर साल मैं कहती हूँ, सवाब, the Hmm. drama with who was it with उनके देखो समीर सुहेल Sohail Sameer, sorry, and it was written by Noor Al Huda Shah, and it was Hmm. about a woman and her journey with her in-laws during Ramzan, right? It Hmm. actually showed कि भाई क्यों आ गई ये उसकी नंद अपनी फैमिली को छोड़ के, मुझे काम ना वहां करना पड़े तो भाभी के सर के ऊपर बैठी हुई है, right? Hmm. Then she's got some kind of like तबलीगी जमात देवर, वो उससे रोटियां पकाता रहता है, शी सो बिजी कुकिंग रोटियां फॉर दीज मौलवी सिटिंग देयर, वो नमाज नहीं पढ़ सकती और उससे तंजे लगा रहा होता है कि Hmm. आप Oh. एक नमाज पढ़ रही हैं। दीज काइंड ऑफ मुनाफा दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी पॉइंट अखलाकियात दुरुस्त करने के लिए। I don't like this these GOP or I think ARY this makafat amal, because it's all a little too easy. Literal. Literal. Yeah. हाँ आपने हाँ. ये किया और वो हो गया, लाइफ इजंट लाइक दैट। I agree with you because I do think that there is a problem. I don't have an issue with मकाफात अमल एंड अच्छी आयशा और हिकायात और वो हमारी कितनी गिरें बाकी हैं टाइप की कहानियाँ, मुझे मसला नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जी वो भी एक ऑडियंस है जिसको हर बात लिटरल समझ में आती है, उनको सर पे डंडा मार के बोलेंगे बेटा ये गुनाह होता है तब उनको समझ में आती है, ठीक है, एक तो एक वो बात हो गई चले। लेकिन आपकी जो बात है ना वो ये बात है कि हमारी जैसी ऑडियंस बैठी है और फिर हमारी जैसी ऑडियंस कहती है यार हमारा कंटेंट कहाँ है, हम भी तो देख रहे हैं टीवी, हमें भी तो देखना है कुछ रात में, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मेरे लिए कुछ नहीं है रमजान ड्रामों में। फसी बारी खान की स्क्रिप्ट चलो थोड़ी ठीक है, छुप छुप के थोड़ा सा एंजॉयबल है, लास्ट ईयर आसपास वाज अ बिट वैकी। Chup Chup Chike is not pretentious. I think it's It's a more bit, and I think satirical. that is why Aspas worked last year because it Yeah. was not pretending to be something complex and something. It was exactly what you need after iftar. You just need to switch your brain off and watch something that's just happening one after the other. The problem with us, like you and me, and I remember why I got excited about Dilwali Gali Mein last year, and then like my hopes were like, because it promised to be intelligent because it was a Zafar Miraj script and Sajjal and Hamza and all of these great actors, Uzma Hassan and Sabah Faisal and all of these guys were there. And then you're like, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ इस ड्रामे में है। तो मुझे लगता है कि हमारा, मेरी और आपकी जो थोड़ी सी, हम अपने आप को अगेन एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग प्रिटेंशियस बट सो बी इट, कि हमारी जैसी जो ऑडियंस होती है जो थोड़ी सी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना चाहती है, हमारे लिए कुछ नहीं है, ये बात फैक्ट है। रमज़ान में हमारे लिए भी जैसे आपने 7 बजे का स्लॉट, एक ब्रेनलेस स्लॉट रखा हुआ है, फिर 8 बजे का स्लॉट आपने प्राइम टाइम रखा है, एक 9 बजे वाला ड्रामा अगर आप इंटेलिजेंट डाल दें तो मेरा ख्याल से कोई हर्ज नहीं होगा। सो पॉइंट टेकन, आई होप दैट, मैंने तो ले लिया पॉइंट मतलब There मेरे। are other stories that look even देखो रमजान का महीना is a spiritual महीना, right? हम्म. So अखलाकियात and look at the way Saima Akram Chaudhary did that Ishq Jalebi. I mean, I हम्म. didn't like the way that she portrayed the American Pakistani. She never does it well. She She never hates does. She us. hates us. Really She hates hates us. us. हमसे जितनी पता नहीं क्या उसके रिश्तेदारों ने इसके साथ किया है, बट हम्म. वो अलग बात है, उनकी राइटिंग अच्छी थी, एंड द वे शी portrayed the difference between the people who came from America, the children who came from America, and the ones in Pakistan. It's good. It was good, the interaction. It gave us a different perspective on life. I हम्म. feel that people, please, please, please branch out, and not every Ramzan drama has to be a comedy. It A can be wacky serious. comedy. Yeah, can be a Hmm. serious story, you Why know. can't we have like slots? Like the 7 p.m. slot can be the wacky comedy, the 8 p.m. can be slightly serious, and the 9 p.m. can be like, एक जमाने में आपको याद होगा सदफ पीटीवी, खैर वो जमाना गुजर गया है सिर्फ याद कर सकते हैं उसको कि यार वो एक ज़माने में बड़ी फिलोसॉफिकल चीज़ें आती थी रात के 9-10 बजे के बाद पीटीवी के ऊपर, जो मेरी उम्र के जो जवान इस वक्त देख रहे हैं हमारा शो, उनको याद होगा 10 बजे अशफाक अहमद साहब बैठते थे, बानो कुद्सिया साहिबा बैठती थी, फ़लसफ़े के ऊपर डिस्कशंस होती थी। तो वो मुझे लगता है वो लोगों को लगता है कि भाई ये तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए अब टेलीविज़न वाले इस पे क्यों बैठें दिखाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है इस पे होना चाहिए काम। इज़ देयर एनीथिंग एल्स सदफ यूड लाइक टू ऐड फॉर No, रमज़ान शोज? no,
not really. I mean, I really I watched a bit of that Chup Chup Ke, and I was Hmm. thinking it's typical rom-com fare, and I think it's going to Hmm. be a hit because this It's is what good. audiences like. या इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। तो आ जाते हैं जी मेरी जिंदगी है तू के ऊपर, क्योंकि ये हमारे आउटरेज लिस्ट में बैठा हुआ है, विराजमान है नंबर 1 के ऊपर। व्हाट डिड यू थिंक? What can I think? मैंने सोचा कि मैं ना I really can't understand। देखो ना, एक you should not take sexual assault, एक तरफ हमें वो पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा देख ओह, रही ओ माय है, गॉड। and the trauma of being filmed, it is a sexual assault। क्या ओ माय गॉड। किसी ने आपके कपड़े उतार के, अच्छा जी, उस लड़के को ट्रॉमा, मैं पहले समझ रही थी, यू एक्सक्यूज पीपल, क्योंकि बिलाल अब्बास की शक्ल इतनी प्यारी है और एक्टर भी बहुत अच्छा है, तो आई एम गोइंग, नहीं नहीं, बेचारे को ट्रॉमा हुआ है इसलिए ऐसे बदतमीजियां कर रहा है और एक्ट कर, राइट, हिज कैरेक्टर कामयाब। एंड देन यू सी हिम दैट वो अब सहेल पुनः उसका बन गया, वो जिसने ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया था उसके साथ। हम्म। एंड इवन फिर आप सोचते हो चलो वो तो पागल है वो लड़का, मे बी द एलीट क्लास इज क्रेजी बिकॉज दीज हम्म। डेज ह्यूमन वर्शिपिंग एंड पता नहीं क्या क्या हो रहा है एलीट क्लास में, राइट। सो मे बी दिस इज आवर वर्जन इन पाकिस्तान, या। हम्म। कि कोई आपका सेक्सुअल असॉल्ट फिल्म करता है तो आप कहते हैं यार छड़ भी ना। ना, क्लास सॉलिडेरिटी है, कोई बात नहीं, बड़ी है मेरी क्लास की, बिल्कुल। बड़ी है, हाँ कोई नहीं। लेकिन इवन जो हानिया आमिर की आयरा है, वो भी जी, उसका फोन आ जाता उसकी बहन का, जाके जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद और बदनामे जमाना किया उनकी माँ को तो जरा चेक करना, हाँ? उसकी बहनों से फोन करती है, क्योंकि दुनिया में सारे डॉक्टर मुका गए हैं। हम्म। तो अरे, आई थिंक राधेन शाह ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा है, मुझे कोई क्लिप दिखा उनका सोशल मीडिया पे, मैंने देखा तो नहीं पूरा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि हर ड्रामा मैसेज के लिए नहीं होता, कुछ नहीं नहीं ड्रामे सिर्फ, बिल्कुल, कुछ ऐसे ड्रामे। करें कि बंदर को बीच में नचवा ले, क्योंकि जाहिर है इंटेलेक्चुअल नहीं देखेंगे लोग, रेटिंग भी आएगी। डिवाइड है। So he said that not every drama is meant for a message. This drama is pure entertainment purposes. Now, again to quote फरहान सईद के, इंटरटेनमेंट है, नहीं पसंद आता बंद कर दो, लेकिन हमारे माशरे में इसका इम्पैक्ट आता है। दैट्स व्हाट फरहान सेड के भाई, ऐसा नहीं है, लोग देख के सीखते हैं, हमारे ड्रामों से लोग देख के सीखते हैं, ये बात भी एक फैक्ट है। अच्छा, ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया प्रॉपर्टी है, मीडिया लैंडस्केप है। न्यूज़ तो है ही है, मैं ये नहीं कह रही कि न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ सबसे बड़ा है, बट अगर आप एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान में न्यूज़ से ज़्यादा हमारा ड्रामा एक्सपोर्ट होता है, अगर आप सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो। अब आपका ये ड्रामा बॉर्डर पार भी बड़ा पसंद करते हैं पूरी दुनिया में, बांग्लादेश के लोग मुझे मिले हैं दुबई में, जिन्होंने कहा यार वो हानिया आमिर वाला ड्रामा देख रहे हैं, मेरी जिंदगी है तो वो मेरी बीवी देखती है, या वो मैं देखता हूँ बीवी के साथ बैठ के। बंगाली लोग मुझे मिले हैं, नेपाल के, श्रीलंका के, वो मुझे बताते हैं कि जी हम हानिया आमिर को जानते हैं, बिलाल अब्बास को जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ड्रामा हमारी हमारी वैल्यूज़ की अक्कासी एक दुनिया में जाके कर रहा है, हमारी ये ड्रामा दुनिया को जाके बता रहा है कि पाकिस्तानी एलीट क्लास जो है वो ये है, और हमारी जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की लड़कियां हैं जो डॉक्टर बन रही हैं, वो इस तरह के लड़कों के बारे में फैंटेसाइज करती हैं, वो अपनी तालीम तरबियत सब छोड़ के वो एक अमीर आदमी के घर में ना चाय बनाने खड़ी हो जाती हैं, एंड विद द मोस्ट फॉल्टी मेड आउट ऑफ स्ट्रॉ लॉजिक के, मैं जानू बनाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपॉलोजी करना चाहती, मैं गिल्ट हो रहा है, तुम्हारी लाइफ मैंने डिस्ट्रॉय की है, तुमने कैसे डिस्ट्रॉय की बहन। अच्छा, रीसेंट एपिसोड्स की बात कर लेते हैं। रीसेंट एपिसोड में जी वो उनको अपनी दादी अम्मा की बड़ी टेंशन हो रही है, अब्बा जी को पास वो लेके गई, फिर वो What was that? Why did they take to Appa ji? क्यों, वो दुनिया में सारे डॉक्टर मर गए थे, वही बचे थे, सारे मुका गए। वही बचे थे, वही बचे थे। अच्छा, सब कुछ एक ही अस्पताल में हो रहा है, वहीं पे उसके वो दूसरे लड़के की अम्मा भी है, कराची में एक ही अस्पताल है जहाँ सब पहुंचे हुए हैं, सही है। तो मैं सवाल ये करना चाहती हूँ बनाने वालों से, हानिया आमिर से। अभी हानिया आमिर ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी पास की है अबाउट हाउ शी हैज़ नो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट एंड टॉक्सिक बिहेवियर। वो इतना बड़ा ड्रामा जो कर रही है टेलीविजन पे, जो उसका सबसे बड़ा ब्रांड है, जो उसने साइन किया हुआ है, जिससे जो मेरा ख्याल से इस वक्त जितने भी टेलीविजन पे शोज चल रहे हैं ना, बशमूल बशमूल मुनीब बट का वो ड्रामा जिसके ऊपर मैं आना चाहती हूँ, इश्क में तेरे सदके, अली अब्बास और वो अनीका जुल्फिकार वाला, उस ड्रामे
ड्रामे में भी कहीं ना कहीं कोई मोरालिटी है सदफ, उस ड्रामे No, में there's भी a lot of ethics in that देर one. इज अ लॉट ऑफ हम द। आएंगे उस पे। हाँ हम आएंगे, वो जो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा या अल्लाह व्हाट रिवर्स वर्ल्ड एम आई लिविंग इन वेयर दिस मुनीब बट जियो का प्राइम टाइम सोपी स्टाइल्ड प्राइम टाइम ड्रामा इज बेटर देन मेरी जिंदगी है तू। Who's the writer? I think संजीवील तो नहीं है, कौन है नहीं राइटर? जंजीबील नहीं है, रेहाना आफ्ताब है, मैं देखती हूँ कौन है, लेकिन इट्स डायरेक्टेड बाय साइमा खाना वसीम। आफ्ताब, आई थिंक, यस हाँ यस। उन्होंने फरियाद लिखा था, वो बड़ा अच्छा ड्रामा था जाहिद अहमद का, और वो उस और उन्होंने बड़े वैसे ड्रामे भी लिखे कि नहीं लाइक यार ये क्या है, लेकिन ये ड्रामा बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। हम इसमें रिडिकुलस चीजें भी हैं बट हम इसके ऊपर आएंगे। कंपैरिजन कर लें मेरी जिंदगी है तू के, अब अगला ड्रामा भी देख लेते हैं, ARY का ही ड्रामा है कफील। अभी डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड अबाउट मेरी जिंदगी है तू, तो हम कफील के ऊपर भी Well, बात करें। it's just it's a plea to our producers, और ये what is the sad part is कि हर साल हम कर रहे होते हैं कि हम्म। कोई एक क्वालिटी कंट्रोल आप रख लें, आप जरूर कमर्शियल ड्रामा बनाएं। हम्म। आप साबुन के पैकेट बेचें, आप कपड़े बेचें, जो भी आप बेचना चाह रहे मक्खन हैं। तेल जो बेचना है हाँ बेच ले, हाँ। हाँ, हम्म। लेकिन आप ना विक्टिम्स की ट्रॉमा को मत इस्तेमाल करें इसका। ये कुछ एथिक्स रखें, कुछ स्टैंडर्ड्स, कि देखो सेक्शन, और गुस्सा उससे सिर्फ अपनी बीवी पे है, हाँ हाँ हाँ। उस उसको पे नहीं माफ है, नहीं कर उस पे सकता। नहीं है जिसने उसकी जिंदगी एक्चुअली बर्बाद की है। उस राइट। पे नहीं है। अच्छा मजे की बात ये उसका कैरेक्टर इतना वियर्ड कैरेक्टर है। आई एम सॉरी, आई हेट यू, आई हेट यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर And दो, आई then, हेट यू। and oh, this is something that I remembered. They are trying to make a parallel track, right? In which जो माँ है बिलाल अब्बास के कैरेक्टर हाँ हाँ की, हाँ। हम्म। वो उसके बाप को अभी तक माफ नहीं कर पाई। एंड प्लीज, एंड आई एम लाइक, देखो जो 30 सालों में नहीं उसे माफ कर पाई, और वो लड़ी जा Dude, that was like such a like I'm like you're in, at this point you're insulting my intelligence right now. रही। You're just माफ in करना माफ, भैया, और जो इस क्लास के लोग होते माफ हैं, करना दे भाई। नो हाउ टू फॉरगिव दैट काइंड ऑफ स्टफ। इवन के आप देखेंगे मिडिल क्लास मोरालिटी, देयर इज रीजन इट्स कॉल्ड मिडिल क्लास मोरालिटी। मिडिल क्लास जो है ना मेंटेन करती है मॉरल्स को, हम्म। जो एलीट क्लास है वो थोड़े या से लिबरल ना, होते हैं, ना एंड सो टॉप द मिडिल क्लास में क्लास एज वेल। मोरालिटी ना टॉप क्लास पे अप्लाई होती है ना बॉटम मोस्ट क्लास राइट। पे अप्लाई होती है, मोरालिटी है ही मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट। इसीलिए उसका जो मिडिल क्लास मोरालिटी जो है ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मिडिल क्लास मोरालिटी ही तो मोरालिटी है, मोरालिटी और किसी को ऊपर अप्लाई ही नहीं होती है। यही होते हैं जो सफेद पोस्ट जिन्हें हम कहते हैं ना कि जो डर लगता है जिन्हें। अच्छा मजे की बात यह आयरा जैसी बंदी की कोई मोरालिटी नहीं है, शी हैज नो मॉरल कंपस। मैं दिस इज वाई ये एंड आई नजर आ रिमेम्बर, रहा है आई वो। रिमेम्बर सदफ आप मुझे कहती थी, आप मुझे कहती थी अबाउट फरहत इश्तियाक, और मैंने उस वक्त तक इतना मैं देख रही होती थी ड्रामे बट मैं डिफरेंट लेंस से देखती थी, तो आपने मुझे एक दफा कहा था जब हमारी बिल्कुल शुरू में गपशप लगी थी, तो यू यूज टू से कि इट्स फरहत इश्तियाक हेरोइंस हु हैव अ वेरी क्लियर मॉरल ग्राउंड, वो उस पर खड़ी रहती है, वो एंड तक हिलती नहीं है, एंड दिस इज सो ट्रू टिल टुडे। आज तक मैंने फरहत इश्तियाक की कोई भी हीरोइन ऐसी नहीं देखी जिसपे उसने कहा हो कि अच्छा ठीक है ना, तो वो चपेड़ मारने वाले के साथ गुजारा कर लेगी, क्या हो गया, सही है, कोई मसला नहीं है। फरहत इश्तियाक की हीरोइन जो है वो, शी विल नॉट स्टैंड फॉर अ शराबी और अ नशई, हम्म। समवन who's doing all of that, because देखो, इट्स ऑल वेरी वेल, ये हमेशा कंटेनमेंट दिखाते हैं। दिस इज व्हाट आई माय बिगेस्ट कंप्लेंट अबाउट बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स एंड ऑल दीज अदर प्लेसेस। ये जो शराब है ना, एक जगह जाके पीते हैं, इट नेवर हम्म। इनटू ऑर्डिनरी लाइफ, राइट? हम्म। जो नशा है ना, वो जाके पार्टियों में करता है। ही इज नेवर ड्रंक ड्राइविंग और इंटॉक्सिकेटेड व्हाइल ड्राइविंग। कभी बीवी को, मोस्ट ऑफ द वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन। And और ये, do you know that Gen Z overall, gambling and alcohol, both these industries are tanking worldwide because यस, Gen Z is not drinking, Gen Z is not gambling, Gen Z is not spending money. By the way, the another third thing is Gen Z is not spending money on pricey items like Prada bags and Gucci. They are spending money on experiences. There's more money in travel now than luxury handbags. And the fact that Gen Z is more aware of the dangers of alcohol is all the more reason for you to show a hero who's not drinking. Like, that's the hero. But this kahani has no hero. I'm sorry. This is not a hero and this is not a heroine. This is a right, we terrible story. understand, but explain to me why Ira doesn't mind these things, no?
Because Ira is written by what Radhen Shah thinks an upper middle class girl is. So I feel sorry for any woman in the world who's like Ira, by the way. So if there is a real person out there who exactly has taken Ira's choices and who's done what Ira has done, तो फिर भाई फिर तो आपकी अकल पे फातिहा ही पड़ा जा सकता है. I'll give him that. देखो हम लोग, मे बी आई एम जस्ट अ कंप्लेनिंग आंटी, तो हम्म. ठीक है, रतेन शाह बहुत अच्छे हैं। लड़की लड़के को चपेड़ मारो, आपकी रोमांस शुरू हो जाती है। वट एवर ही सेइंग, मैं मान गई हूँ आपको। हम्म. लेकिन एक चीज है, डू नॉट टेक सेक्सुअल असॉल्ट एज अ गेम। ओके। बड़ा सुन रहे हैं हमारी. बड़ा फर्क पड़ा है उनको हमारी डांटों से. खैर, सरफ आ जाते हैं. स्पीकिंग ऑफ समथिंग टू बी टेकन सीरियसली, एक और पाकीज़ा के ऊपर, बिकॉज आई थिंक दैट दैट डिजर्व्स लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन. पिछले पिछले हमारे उस पर भी लोगों ने हमें बड़े कंप्लेन किया था कि आपने एक और पाकीज़ा का, मैंने कैचअप नहीं किया था सही से. अब मैंने सही से कैचअप किया, तो मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ. बिग रिवील, बिग ड्रॉप हुआ है जी. क्योंकि जुबैर साहब जो हैं, गौहर रशीद का कैरेक्टर, वो मलिक जुबैर आई थिंक, वो गांव से ले आए हैं, जो नम्रा शाहिद प्ले कर रही हैं. पक्का बीवी है वो. ठीक है, वो उनकी बीवी है. और वो ले आए हैं, और अब नाउ ये बॉम्ब फटा है जी लॉयर साहिबा के ऊपर, आमना इलियास के कैरेक्टर के ऊपर. On the other hand, we have this girl, Seher Khan's character, coming into her own, standing up to the system, knowing law, knowing the legal loopholes. And what I love about Ek Aur Pakiza is that it actually pays attention to the lower class grind. जो उनकी जो फेस करते हैं. देखिए, जो अमीर आदमी होता है वो कह सुन के फ़ोन करा के आएगा, गाड़ी से उतरेगा, बैठेगा, बात करेगा, चला जाएगा. लेकिन जो एक गरीब औरत जिसके साथ ये हुआ है, जिसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको किस किस्म की लैशविस किस्म की उसकी उसकी तरफ देखा जाता है, उससे किस तरह के सवाल किए जाते हैं, असॉल्ट के ऊपर किस तरह की इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग होती है, उसका लॉयर उसके साथ बैठा है फिर भी उसके साथ किस किस्म के सवाल किए जाते हैं. आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग टू शो. इट काइंड ऑफ मेड my skin crawl. Kind of, yeah, it made my skin crawl. Uncomfortable to Very watch. uncomfortable to watch, very difficult to digest. But then I am glad that at this point in time, the drama is they took it in a way जो उन्होंने एक बेहतर बैलेंस रखा जर्द पत्तों के बन के कंपैरिजन में. बिकॉज जर्द पत्तों के बन में वो डंडे मार मार के हमें कहानी सुना रहे थे. यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ी सेंसिटिविटी रखी है औरत की, और थोड़ी सेंसिटिविटी रखी है मर्द की भी. जैसे वो बड़ा अच्छा मज़े का डायलॉग है कि भाई सारे मर्द बुरे नहीं होते, तुम लोग तो सिर्फ मर्द को बुरा कहते हो. और फिर जो फराज, प्लेड ब्यूटिफुली बाय नमीर खान, फराज का कैरेक्टर जिस स्ट्रगल से गुजर रहा है ना, कि भाई, और फिर वो बार बार ये बात कहता है कि भाई असल तो वो है, असल विक्टिम वो है, और वो तो कर नहीं रहा है, और तुम विक्टिम नहीं हो. You know what? I found the most beautiful and memorable scene was when she's sitting in the वो वकील के आगे, वो इतनी एंड ही अच्छा जी, सीज द ये कौन पिक्चर. है? वो एकदम, जी मैं हूँ, शौहर हूँ And इसका। did you see that he opens the wallet and there's her picture in it? This frayed wallet, like attention to detail, wonderfully done by Kashif Nisar. He opens the wallet to take out his ID card copy, and she just glances at his wallet and there's a picture of her. दो मुस्कुराती हुई, and Okay, वो I वाली cried. लड़की. I cried. I'm sorry, guys. I did cry because, in a sea of terrible people, there's this like innocence of their love. Humanity. Right? There's that humanity, yeah. ब्यूटीफुल। इट्स नो वो जो हमें थप्पड़ मार के और डंडे मार के बताया जा रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हाँ. नो ही इज वीक। और फिर एंड पे वो कह रहा होता है, व्हेन दे हैव दैट कॉन्वर्सेशन, अच्छा तुम्हारे घर, अपने घर कब जाना है तुमने? तो कहता मैं वहां क्यों रहूंगा जहाँ तुम्हें नहीं जगह मिल सकती। एंड देन यू हाँ. रियलाइज के दैट इज व्हाट मैरिज इज, राइट? इट्स नॉट these ग्रैंड थिंग्स। वो जो एक दूसरे को कबूल करना, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो Yeah, it's थैंक also, यू। and yeah, thank you the entire team of Ek Aur Pakiza. I also loved another moment. Dawar Mahfouz, who plays Pakiza's brother, Asghar, I think, the one who stands with The her. one we are supposed to think, उससे हमें शुरू में डराया गया। हाँ के. I have to thank Beegul again. Yeah. उसने ना, she took that trope के भाई ने इसका कत्ल करना and twisted it on its head. I loved it. Acha, I have something to say about it, but first I'll Go say for it. what my piece on what I loved about it. Like, I loved that he said कि तू बड़ा बहादुर है, तेरी तू बहन के लिए खड़ा हुआ है. कहता है मैं तो बहादुर नहीं हूँ, बहादुर तो वो है. वो खड़ी हुई है, मेरे बगैर भी खड़ी हुई थी, मेरे मतलब कोई उसके साथ था नहीं था, वो सबसे बड़ी चीती तो वो है. और वो, अच्छा, उसकी माँ, मैंने इतनी मुश्किल से उसे कन्विंस किया, तू जाके उसको सपोर्ट कराया.
women perpetuating this kind of misogyny against other women when they know the women are suffering, when they know their women, the women in their, and it's their own ranks, it's their own daughter. Like I cannot understand There are mothers women like like this. that. I No, but there cannot are understand mothers like this. They throw their daughters to the wolves. Like, who are you? Who are you? बेटों का से बड़ा प्यार होता है. Haven't you noticed? The girl was basically a favorite. दुआएं मांग के उन्होंने बेटी ली थी, right? So she was his favorite. इस And दिन के लिए टाइप की माओं का एक ही डहा है मेरे बेटों की. You know that they will suffer, right? I've seen mothers ये like that. मुअम्मा मुअम्मा में भी ये बड़ा हार्ट Yeah, ब्रेकिंग मोमेंट था, भाई उस पर भी मेरा आएंगे. बेटा. But there are women like that, ऑफ unfortunately. कोर्स, या ऑफ कोर्स. राजा बेटा टाइप्स. राजा बेटा. सो एक तो चलो वो बहुत अच्छा सीन था. आई रियली लाइक दैट मैन्स डायलॉग्स वेरी रियल, वेरी वेरी रियल. ठीक है, और ये ऐसे क्यों बैठी है, मास्क उतार के बैठ, आराम से बैठ, मतलब ही. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ड्रामा इज दैट इट्स टॉकिंग टू मैन. It's Yes. telling men, look. Whenever we see, oh, dukhi aurat, damsel in distress, so we're thinking, oh, she's talking to women. We are feeling cathartic. Hum mazloom, hum mazloom, hum mazloom. So much of the conversation, so a big part of Ek Aur Pakiza's conversation is talking to men, saying this is laying like a roadmap that this is how ये you. मर्द होता है. आई उसका जब शी डिडंट इवन नो हिज फुल नेम, क्या उसका, फराज, मोहम्मद फराज हसन या समथिंग, राइट? Hussein, हाँ, जो भी, हाँ. हुसैन, राइट, सॉरी. एंड आई आई अंडरस्टैंड दैट बीगल इज टेलिंग ये इसका मतलब है कफालत. इसका Hmm. मतलब है यू आर अ मैन, राइट? व्हेन Hmm. दे आर किक्ड आउट ही फाइंड्स अ प्लेस टू स्टे, ही फाइंड्स अ जॉब. उसे पैसे खर्चा देता है. अदर पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड इट from other cultures, but in our culture, like specifically Muslim culture, ये Hmm. जो खर्चा देना होता है and all this kind of stuff, you see it in Zindagi Gulzar hai, Hmm. right? It shows that I am taking charge, I am doing my role, my responsibility of चाय what. चाय बचा ली, चाय चाय से गिरने से मेरा हाथ बचा लिया. What I didn't like about that bhai wala track is, I will move on. Not, I will not move on from Ek Aur Pakiza before I mention this. That what I didn't like is that this sort of gives you a maybe a false sense of hope. Maybe that's the purpose. I don't know. कि ऐसे मर्द बदल जाते हैं, ऐसे मर्द वापस आते हैं. जो इतना कमीना भाई होता है ना, वो ऐसा कभी नहीं होता. मेरा तो नहीं, नहीं ख्याल. फ्लिप साइड वो दिखाते हैं ना, जो जीदार बंदा होता है ना. हाउ शुड आई पुट इट, वॉरियर्स जो होते हैं ना, दे हम्म. एडमायर द करेज ऑफ द ऑपोजिशन. पॉसिबल. और वो क्रिकेटर है ना, कॉम्पिटिटिव. Hmm. तो He looks at it like a competition, like a उसने war. देखा कि हम गैरतों की तरह ना. तो अच्छा, वो मजे का ये बात है कि वो जो ऑफेंडर है वो रोज आ जाता है उनके घर मजे ओ, लेने. वो जो बैठ के टांग पे टांग रख के, उसने कहा बेगैरत तो हम लोग हैं जो वो उसको हम अपने घर में आने देते हैं. फिर वो बैठ के हमें. ऑपोजिशन टीम का. हाँ. क्रिकेटर, आप क्रिकेटर की बात कर रहे हैं ना. सो वो एकदम उसी जो दुश्मन पार्टी है वो घर में आके हमें ताने दे रही है, मैं मुंह पे मार रही है ताने, एंड हम लोग चुप करके ले रहे हैं. बहुत दैट बहुत शोज बहुत द मजा काइंड आया. ऑफ मतलब मजा इन द ब्रिलियंस. सेंस के मजा नहीं आया, मतलब बहुत इमोशनल एपिसोड्स थी, बहुत अच्छी एपिसोड्स थी, बहुत मजा आया उस तरह देख के. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे मजा आया. मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हुई थी पूरे दोनों एपिसोड देख के. तो एक इमोशनल कनेक्ट है मेरा बिल्ड हुआ हुआ इस ड्रामे के साथ. बीच में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट वॉज ट्रॉमा 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 डंपिंग. बट आई स्टेड विद इट बिकॉज आई न्यू, एक तो ये बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट, मुझे अंदाजा था कि ये टॉपिक सेकंड बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट. सा टूटा नहीं है. आई हैड रियली होप कि आमना इलियास और जो गौहर रशीद की केमिस्ट्री थी इतनी हम्म. जबरदस्त. आई और हैड मुझे पता था, सो होप. मुझे पता था ऐसा कुछ आ रहा है. शुक्र है विलन नहीं निकला प्रॉपर वाला, कि यही रिंग चलाता है ये वाले. नहीं वो नहीं, मुझे एंड उम्मीद थी कि ये निकलेगा. यू सी हाउ एवरीथिंग इज फ्लिप्ड. और वो इतनी दोस्ती है उसकी वो मम्मी जी के साथ ना, जो उसके फादर की सेकंड वाइफ थी. हम्म. एंड नाउ शी इज इन द सेम पोजीशन एज हर मदर. असल में ये वाली भी एक बड़ा अच्छा कमेंट जो बीगल ने दिया है अबाउट अर्बन वर्सेस लाइक रूरल क्लास और फ्यूडल क्लास रादर. कि ये जो एक गिवन सा झूठ ये बोलते हैं, या एक गिवन सी रियलिटी है इन इस तरह के, हाउ शुड आई से, इट्स अ कलूजन ऑफ कल्चर्स. और वो जो रियलिटी जिसमें ये हमारी अर्बन लड़कियां, आमना इलियास का जो
पूरा आर्किटाइप है वो जिसमें जी रही होती हैं, और ये जिस रियलिटी में जी रहे होते हैं, कितना फर्क है दोनों में, दोनों की मॉरल्स में Never कितना marry फर्क a guy from the pind. है। I've married a guy from the pind. Uh-oh. Let me check his background again. This has happened to a friend of mine. This was warned to me. This was warned to me when I अच्छा, when people in my family found, because I'm a city person. So people in my right. family had found out के पिंड okay, च बीवी होनी है फिर दी। अब हाँ हाँ, अरे मैं एक्चुअली मैं मुझे बोले, मेरे अंकल्स ने मुझे आके बोला था कि ये गांव का है। मैंने कहा हाँ, ही इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, नॉट अ गांव बट अ स्मॉल टाउन। He will have a wife there. You will find out after you have 2 kids. So now I will have another question answer session with my. This is so funny. My husband, I remember, he used to say, हाँ, to tease people, हाँ, मेरी एक दुबई वाली बीवी है ना। So, I Hmm. always say कि आए और खिदमत करे। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ना करे। खैर, कमिंग टू खिदमत गुजार बीवीज, कफील सदफ, फाइनली I'm था finally था very जिसका disappointed. इंतजार वो शाहकार आ गया, फाइनली जेबा के सर पे वो हथौड़ा गिर गया जो गिरना था चाहिए था बहुत पहले। I'm just really fed up with women like Zeba. And I don't know why she had so many children with him when she knows, देखो ना, he's such a red flag, and yet, और फिर ना उसको ना कारी, ये जो सारी उम्र वो मॉडरेट नहीं हो सका, आप चुप करके बैठे हैं, ये रिश्ता हो रहा है, ये आई मीन इट्स डिस्गस्टिंग। एंड देन शी इज शॉक्ड के हाय जेवर उसने बेच दिया। हाँ मतलब उनके उसके बच्चे शौक नहीं हो रहे, बस जेबा साहिबा अभी भी ये शौक हो रही ये हैं हैं। इतनी होती क्यों है? हैं। अच्छा, उसकी अम्मा जिनको मैं कहती हूँ कि शी इज वन ऑफ द डम्बेस्ट पीपल अलाइव, शी इज नॉट शॉक। ठीक है, तो पहले उस जामी से पूछो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, जामी जामी जामी। ओह, एंड अमेरिका वाली आंटी अभी जिंदा है और शिकायतें लग रही ओह, हैं उसके सामने। ओह गॉड। अरे वो नहीं है, इफ आई कुड टेक अ झाड़ू टू समवन ना, या पुट्ठे हाथ दी डोई या समथिंग, राइट, समवन डिजर्व्स अ गुड वैकिंग, इट इज दैट वुमन वो फ्रॉम अमेरिका। असल में आपको इसलिए वो बुरी लग रही है कि दोज आर द क्वाइट परपेट्रेटर्स ऑफ द एक्चुअल क्राइम्स। वो पीछे जो पेचे कसते हैं ना, जो सारे वो गंदगी के, वो यही होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। आई फील लाइक this drama is finally at that point. मतलब I think that it was like a whole टॉर्चर सेशन। ठीक है, एक टॉर्चर सेशन जो उन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया था ना, वो ये क्रिएट किया था कि एक औरत की लाइफ है जो कि फुल ऑफ टॉर्चर है, फुल ऑफ टॉर्चर है, फुल ऑफ टॉर्चर है, फुल ऑफ टॉर्चर And है। it's self chosen, so I appreciate that part, right? वो दिखा रहे हैं कि this is her, this is, you chose this. नो 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 नो, मेरा मेरा मसला ये नहीं था। मेरा मसला तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, मेरा मसला ये है कि जो लॉजिक उन्होंने दिया ना, मैं उस लॉजिक से एग्री नहीं करती कि एक लड़की इस टॉर्चर में क्यों रह रही है। मुझे तो उस लॉजिक से प्रॉब्लम था। अच्छा जी, चलें, आपने कहा कि जी बड़ी सब कुछ सही भी हो लाइफ में तो भी लड़की के साथ टॉर्चर वाली लाइफ हो सकती है। अच्छा चलें जी, हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ हम्म। गए, हमने देखा कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के साथ ये हो गया। मुझे ये भी पता चला है बाय द वे कि जेबा के जो बच्चे दिखाने थे वो बहुत बड़े दिखाने थे। मतलब जेबा के बच्चों की ये एज नहीं होनी थी, और बड़ी उम्र के बच्चे उन्होंने दिखा थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई इतने छोटे बच्चों को सिर्फ जिंदगी में एक ही टेंशन है कि शादी हो रही है नहीं हो रही, और कोई टेंशन नहीं है। सो वो मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा था। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी बच्चियां हैं, इनकी शादियों की क्या टेंशन है। तो वो मुझे लग रहा है कि वो कहीं कास्टिंग में उन्होंने आगे पीछे किया। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, फाइनली जब जामी जस्ट लूजेज इट एंड लाइक pushes her, and then that's when she realizes, oh, I cannot live with this man anymore. The good news is that it really is important to show that a man who raises your hand on you once, raises his hand on you once, is going to do it again. So she finally lost it and took that step. So thank you, Mer Ahmed, for showing that. Thank you, Big Bang. Thank you, ARY, for doing that. Another good news here is how they show the aftermath. They go into painstaking detail of the aftermath of leaving a man like this. मेरा सामान है, तुम लेके नहीं जा सकती, तुम ये नहीं करो, तुम ये नहीं करो। शीज लाइक ओके, लीव इट, छोड़ दो, सब छोड़ दो। वेरी गुड टू शो दैट। ठीक है। what I don't understand and what I still have a problem with is कि ये भी उसको एक ही मोमेंट में डॉन हो गया। उस पर थोड़ा सा और इनर मोनोलॉग या कोई मोमेंट बनता था जिसमें, क्योंकि आपने इतनी देर, 20 एपिसोड्स हो गई हैं मेरे ख्याल से, 20 हफ्ते, या 20 तो नहीं, 10 हफ्ते, क्योंकि एक वीक में 2 आती हैं। 10 हफ्ते यानी तकरीबन 2 ढाई महीने हमने इस लड़की का कोई खास इनर मोनोलॉग देखा नहीं है। हर तो why इंसान
Why? we have and this is my guess, right? Hmm. They have deliberate because ये दुरे शवार ये सब कुछ बन चुके हैं ना. So Hmm. I have a feeling that they focused on the young Gen Z to draw in that audience ताकि they learn from this as well, right? So I बट mean, जेनजी तो इनर मोनोलॉग बहुत बड़ा होता है सदफ, जेनजी तो करती इनर मोनोलॉग है, आउटर मोनोलॉग, मोनोलॉग की तो इनकी नार्सिसिज्म ही इतना ज्यादा है जेनजी वालों का, तो है ही मोनोलॉग वाले बच्चे। तो इनको तो देना चाहिए ना। I think that the director focused on the younger crowd a lot, so Zeba got pushed to one side a little bit. Yeah, they just use Zeba as a framing device or as a plot device to introduce more, मतलब I think, Framing device is the right word. हाँ फ्रेमिंग डिवाइस था जेबा की पूरी लाइफ। दिस इज व्हाई आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ द होल्स दैट वर इन जेबा's plots, what she does and how she does it and what her personality was, were left just unchecked, and that is why, and you know, वो कुड हैव बीन अ कंटेंडर वाली बात है। अगर आप उसको दे देते वो मोमेंट्स, अगर आप उसके वो आंसर्स दे देते, इट कुड हैव गॉन डाउन बिगर देन दुरेशेवार, बिगर देन ऑल ऑफ दो स्टोरीज जो हमें क्लासिक्स उमैर अहमद की जो हैं। बिकॉज ये रियलिटीज हैं, मैं ये नहीं, अगेन मैं बार बार कहती हूँ, कोई मुझे ये ना कहे, और मैं कह भी नहीं रही हूँ कि ये जेबा जैसी कौन होती है। जेबा जैसी लड़कियां बहुत होती हैं, लेकिन जो आपने जिस तरह जेबा की स्टोरी सुनाई है ना, वो आपने इंसाफ नहीं किया जेबा की स्टोरी के Also, साथ। tell me, right, ये जो बच्चे बड़े बड़े हैं, देखो जो बहन भाई हैं जेबा के, वो इतनी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ करके तो वो कुछ बन रहे हैं. तो जेबा के बच्चे सिर्फ शादियों के बारे में सोच रहे हैं, राइट? हाँ। पार्टियां कर रहे हैं और ब्रेकअप पार्टी हो रही है यार. काम द हेल डाउन एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर्स. यू सी व्हाट योर मदर इज गोइंग. कोई एक जेबा की बेटी ने कहा है कि मैंने कोई डॉक्टर लॉयर, मैंने कुछ बनना है जिंदगी में? नो. राइट. वो बट एक आई वो लाइक वट द कॉन्वर्जेशन बिटवीन जेबा एंड दैट बॉय, जिसको वो Yeah. बुला के घर में बताती है कि मैं नहीं चाहती कि वो एक तुम मना लोगे, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी ऐसी घर में क्यों जाए जहां तुमने लड़ लड़ के उसको बनाया, तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। दैट वाज अ गुड थिंग। आई ऑल्सो फील लाइक दैट अदर ट्रैक, जो नाराज बहू बहन बेटी जो है, और फिर वो जो I'm सैफ। really enjoying that. आई, Why? Ask me why. वाई, वाई? Why? Because I see girls like that all the time. I Yeah, know you've you're told on the me. girl side. I'm not. I think the boy Hmm. is absolutely, in fact, he's being too nice to her. I think that boy is whitewashed. I messaged you. I said I don't like this boy. I do Not at not like. all. Yeah. He's doing his best, right? देखो, in my experience, I want to ask that girl, what did she is his girlfriend or his wife, right? Hmm. अगर आप अपने, she knows what lifestyle they lead, Hmm. right? Hmm. She's not, she's not blind. वो एक दूसरे के घर आएंगे. I'm not understanding कि उसका attitude जो है कि मैंने कुछ नहीं करना है और लोग मेरे लिए सब कुछ करें, Hmm. right? तुम आओ. दैट सास इज नॉट आस्किंग यू टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर द पूरा टब्बर. वो एक Can सास I है, वो answer that question for दूसरों के you? लिए क्यों नहीं बना सकती? Can I answer that question for you? तो I know exactly the answer to that question. The answer to that question is he's Mr. Nice Guy. So when women like her see Mr. Nice Guy, they think, अच्छा मैं तो इससे शादी करूंगी, ये तो मेरा पपी बन के रहेगा। और बकौल फहद मुस्तफ़ा के वो चिप चिप वाली नहीं, वो वहू वाली पपी, तो वो वाला डॉगी बन के रहेगा सामने। ये तो मैं उसको कहूंगी मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, ये। लेकिन जब मर्द बीवी बीवी जब देखता है, या जब मर्द शौहर होता है, तो मर्द शौहर होता है। तो ये एक कॉमन, आई थिंक व्हाट दैट्स, इज हर पर्पस देयर? आई मीन लाइक उसका सिर्फ but पर्पस that's था. not what, that's what I'm trying to tell you. That's not what she's seeing. She saw a dude who was madly in love with her. मेरी शादी होगी तो मैं वो इंस्टाग्राम वाली फलक शब्बीर और सारा खान वाली जिंदगी गुजारूंगी, जिसमें रोज मुझे वो एक फूल ला के देगा। और वो जो, अगर आपको वो मूवी याद हो, दिल चाहता है, दिल चाहता है में नहीं, वो एक रोज वो गुब्बारा हार्ट शेप्ड बलून उसको ला के देता था। That's the life that some of these, and I'm telling you, Sadaf, remember we talked about it, that अच्छा, मैंने sometimes, इरिटेटेड हूँ अगर if somebody did that to me. Maybe I'm because just you're a mature person, Sadaf. But you remember, you and I used to talk about it. Ke, what is going to happen to some of these girls who are so unforgiving? I think we talked about it when Jaffa was airing, and we talked about how unforgiving they were to Usman Mukhtar's character. And we were like, but what is he supposed to do? Like, what is a man? तुम्हारा काम क्या है? सारा दिन बस ऐसे अपना फोन देखना? हाँ एक हाँ हाँ घर से हाँ। ग्रो अप, अपना घर को संभालो. देखो, No, you no. didn't want to live that kind of life, right, in which you have a mother-in-law and you have a husband who is a middle class earner. तो फिर तुम किसी और घर में अपना रिश्ता करवाती. Why did you हाँ, नहीं तो marry? वो भाई It's इतना not a लंबा, love marriage. इतनी दूर की कौन सोच रहा है, इतनी Yeah. दूर की कौन सोच रहा है। तो मेरे कहने का मकसद है कि मुझे उस कहानी में ना, मुझे दोनों नहीं पसंद।
Obviously the girl is a brat, but No, I don't like the boy also. I think that yeah, I think you have made a good point though about boundaries. He didn't Hmm. set the boundaries from the beginning. He should have said कि देखो, this is what goes on in our household. But then फिर story कैसे बनती ना? नहीं वो वो तो हाँ, अगर ऑफ वो कोर्स, करता तो हम लोग कहते इट्स रेड फ्लैग है। इट्स प्योर रेज बेट, दैट स्टोरी इज रेज बेट, दैट स्टोरी इज टोटल रेज बेट। मुझे लगता है कि एंड यू नो इट विल अनॉय बोथ साइड्स ऑफ द जेंडर स्पेक्ट्रम। लड़कियां जो हार्डकोर फेमिनिस्ट होंगी वो कहेंगी ये लड़का गलत एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और जो नहीं नहीं, लड़के होंगे। आप शादी करें ही ना ना, फिर आप अगर आपको ये एक्सपेक्टेशंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग आउट ऑन अ डेट एंड एक्चुअली बीइंग मैरिड। भाई आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड विद दीज गर्ल्स, लाइक मैं पहले लड़की के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, फिर मैं लड़के के पर्सपेक्टिव से बात। लड़की के पर्सपेक्टिव में व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इंस्टाग्राम स्पेशली हैज डिलूडेड अ लॉट ऑफ दीज गर्ल्स दैट शादी के बाद की लाइफ इन अ सर्टन वे होती है, और ये जो लग्जरीज या ये जो पॉइंट्स होते हैं जिंदगी के, वो सबकी लाइफ में एक जैसे ही होते हैं। आप जिस सोशो इकोनॉमिक क्लास में घुसी हैं वहां पे तो ये रियलिटीज नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज जो आजकल की बच्चियों के अंदर, कभी कभी ऐसी बच्चियां होती हैं, मैं नहीं कह रही सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, ऐसी बच्चियों का एक और प्रॉब्लम भी क्या होता है कि उनके दिमाग में या उनके जहन में या उनकी ब्रिंगिंग अप में ये सारी चीजें बहुत सेल्फ सेंटर्ड उनको बना के दी गई होती हैं। जैसे उसकी माँ जो वो कमेंट भी करता है कि ये अच्छी तरबियत है, अगर आपने बच्ची को सुबह नहीं, कहती है उसको घर में काम करने की आदत नहीं है ये करने, तो बोलो भाई आपने तरबियत ठीक नहीं की। भाई वो जिस क्लास उनका घर देख लें और फिर वो उस बच्चे का घर देख लें जो जिस घर में वो रहता है, उनके घर में जरूरत नहीं है लड़कियां के उठ के सुबह उठ के काम करेंगी, इनके घर में है। तो ये जब वो क्लास डिफरेंस में जाती है ना तो उनको लगता नहीं क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। नॉट मैं जस्ट किसी से नहीं, क्लास मैं किसी से डीएम पे डिफरेंस। बातें करूं सदफ, मैं किसी से डीएम पे बातें शुरू करूं, मेरे लिए वो इक्वल है। वो मुझसे अगर मेरी जबान में मेरे लैंग्वेज में बात करेगा तो मुझे लगेगा हाँ सही है, वो जैसी मैं हूं वैसा ही है। तो वो बेवकूफी में उसने कर ली शादी क्लास से स्टेप डाउन करके, और अब वहां उसको ये And फटा। this was an arranged marriage. This is why it's not making sense to me. But हम्म। anyway, I think it's a very accurate portrait because a lot of people have this idea. You say that it's Instagram. हम्म। आपके थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी कि it's not Instagram that is ओके। doing. ये ओके। हमारे इंडिया के ड्रामों में यही होता है ना। बहू को तो हाथ नहीं हम लगाने देते काम को, 2 हफ्ते के हैं। पता नहीं 4 हफ्ते, छह अच्छा। महीने तुमने वो दीज थिंग्स आर बिल्ट अप इन ऑल ऑफ आवर मीडिया। ये पर्टिकुलरली हम्म। आवर कल्चर, वो किसके बल के ऊपर बहू को खाने किचन में नहीं आने देते या एटसेट्रा, बिकॉज दे हैव सर्वेंट्स इन पाकिस्तान। दैट्स वन ऑफ हम्म। द बिग थिंग्स, यू नो, व्हेन यू वॉच a lot of things, यहाँ तो मैं मासी बनी हुई हूँ, यहाँ तो मैं ये हूँ, and you're looking at these women and you're thinking God you're such an idiot, right? कि you can't cook for yourself, दूसरों को तो छोड़े, you have no skills whatsoever, फिर ना, कहेंगे कुकिंग कि इज अ मैं लाइफ डॉक्टर स्किल। हूँ, मैं फलान हूँ, कुकिंग राइट? इज अ लाइफ स्किल। हाँ Yeah, हाँ। why you can't make yourself a cup of tea? कोई आके तो तुम्हारे लिए बनाए, वरना तुम जिंदगी तुम्हारी अजाब है। And at the same time they'll say I have an MBA from LUMS, right? भाई मैं कहती हूँ अगर वो लड़की कोई कमा भी रही होती ना तो उसका ब्रैटीपन मुझे समझ में आता, नहीं भाई शी वांट्स टू लाउंज अराउंड ऑल डे एंड आई एम लाइक गर्ल नो। आई Right. ऑल्सो डोंट लाइक द बॉय। द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक द बॉय is that I think that he is not really he's doing his best. I'm not saying considering his capacities he's doing the best, but he also needs to understand that his life and this girl's life is very different from his. It's Hmm. very different from, and I think that because Umaira always takes such a stern टीचर वाला एंगल के वो बताती हैं कि बेटा देखो ये नहीं करते, तो उसमें वो लड़कियों को सबक सिखा रही हैं कि देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा कि तुम्हें शादी के बाद ये करना है। मैं डिसएग्री नहीं कर रही उस चीज से, ये जिम्मेदारी होती है। नहीं नहीं, ले- come on, let's नहीं be नहीं fair. नहीं नहीं, I'm आई एम गोना saying डिसएग्री विद यू। okay then. हाँ। I'll stick up for the Mera in this one time that I think she's वन also टाइम। showing, no, no, because I have been very critical of Amara as well, right? सो So है भाई। I'll stick up for her this one time कि she said she's showing that लड़के का भी काफी कसूर है, but not in the way because he didn't set out proper boundaries from the हम्म। beginning. हम्म। This is what's expected, this is what is बट not. आई डोंट थिंक शी इज शोइंग दैट। जो आप पिकअप कर रही हैं ना वो उन्होंने नहीं दिखाया है, जो आप पिकअप कर रही हैं जिस चीज पे, हो सकता है आगे दिखाएं, लेकिन मुझे नहीं नजर आया वो। और मेरा प्रॉब्लम मेरा से ये कि बिकॉज शी ऑलवेज टेक्स सच अ
some, and she's gotten a lot better, by the way, to be fair to Mera. I She's think she gotten, softened up. Yeah. yeah, she softened up when she used to be very hardcore when it came to certain values. Now, though, she's become much better. But I think that in this drama also, she's taken um, a very one-dimensional view of what how this relationship is working, and she's whitewashed this boy. ये कितना अच्छा है, ये मम्मी का ख्याल रखता है, ये बहन का No, I ख्याल don't रखता think है. he's that great a person. I don't Honestly. think, but she's showing it. She's Hmm. showing that he's a good he's person. not he's not acting like he should. देखो ना, जहां उसे लिमिट करना चाहिए था, फ्रॉम डे वन ही शुड से, देखो हमारा घर पर ऐसे है, खुद इंसान नाश्ते, डू दिस डू दैट, द वे ही वोक अप एंड से चलो मेरे लिए नाश्ता बनाओ, दैट वाजंट वेरी नाइस. ही कुड से आज मैंने बना लिया है, या आज मम्मी ने, कल से आई वुड लव टू ट्राई योर कुकिंग, राइट? बस तुम Hmm. मेरे हस्बैंड की तरह चालाक नहीं है ना. Possible. मैंने आपके हाथ का खाना है. हाँ हाँ हाँ, या वो मेरे हस्बैंड को लगता है जब वो बहुत स्मार्ट बन रहे होते हैं ना, तो वो जब इस तरह की बातें करते हैं, तो वो आगे से जब मुझे को बुरा लगता है कि तुमने मुझे ऐसे किया, वो मैं प्यार से कह रहा था. तो हाँ मैं, yeah. ये अच्छा है, ये अच्छा है. आप किसी के ऊपर वटा फेंक के मारो और उसके ऊपर बो लगा दो, मैंने प्यार से फेंका था. तो खैर, एनीवे गाइस, लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट कफील. अनदर ड्रामा which is our top favorite is Muamma. Mm. Sadaf. Muamma is तालियां अच्छा, just when you think that it's stuck in a bit of a rut, the चक्कर hmm, काट रहा है, and then चक्कर काट. suddenly Imran Nazir, right, pulls the rug under your feet, right? और Yeah, फिर yeah. एक twist आती है. Brilliant. Surprisingly, I'm very interested in the Myra Junaid Dynamic. dynamic more than right now the Gigi dynamic, because Gigi dynamic is, दो चीजें बड़ी अच्छी थी. Let's talk about the good first. The good was that I love how she opens up to her mom. एंड शी टॉक्स अबाउट कि मेरे साथ बचपन में आप ऐसे करती थी, आपको क्यों, वो आपका ख्याल नहीं रखता, आपने तो मुझे कहती जब मैं, और वो एक पूरा मोनोलॉग है ना, एक तो सबा कमर यार कमाल. Hmm. वो पूरा मोनोलॉग है ना जिसमें वो बताती है कि जब मैं उससे लड़ती थी तो आप मुझे डांटते थे, जब वो मुझे तंग करता था तो मैं लड़ती थी तो आप मुझे डांटते थे. यार ये इतनी मज़े की सटल डिटेल है. एंड यू नो एट दैट पॉइंट यू लाइक यार दिस इज़ वाई यू लव पाकिस्तानी ड्रामाज. बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना, वो मैं बार बार ये बात करती हूँ कि वो नफ्सियात को, हमारी माशियात को वो ऐसे उधेड़ के रख देते हैं. क्योंकि उस मोमेंट के अंदर ना, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम अ गर्ल लर्न्स हाउ टू साइलेंस हर सेल्फ, हाउ टू सेल्फ सेंसर. कि मैं नहीं बोलूंगी कि भाई ने मेरे साथ ज्यादती या गलत कोई चीज़ की है, क्योंकि अब्बा जी तो भाई का ही साइड लेते हैं. और इंसान जब बड़ा होता है ना, ये बिल्कुल बेसिक साइकोलॉजी है, आई एम श्योर यू गाइस ऑल ऑफ यू नो, कि जब इंसान बड़ा होता है ना, तो वो दुनिया की मॉरालिटी शेप करता है अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के Hmm. पर्सपेक्टिव से. उसके पेरेंट उसके साथ कैसे होता है, उसकी बेसिस पे इंसान, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, उसकी बेसिस पे इंसान डिसाइड करता है कि मेरी दोस्तियाँ कैसी होंगी, अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, दुनिया के लिए अच्छा क्या है. इसीलिए ये जो हमने पेरेंटिंग की बात की, हम बार बार जो हमारे ड्रामों में बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं कि जो फ्लॉड पेरेंटिंग होती है वहाँ से फ्लॉड इंडिविजुअल्स बाहर निकलते हैं. तो मुअम्मा के अंदर वो जो मोनोलॉग था सबा का, जब वो अपनी माँ के सामने कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने आपसे झूठ बोला था, और आप मेरे साथ बचपन में ये करती थी, आपने Very मेरे भाई को, painful. ओ माय गॉड, गटेड मी फ्रॉम इनसाइड. बहुत अच्छा लगा मुझे जब उसने अपनी माँ को ये कह के बोला कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ नहीं होता. Okay. Have you noticed what a zero sum game everybody is? या औलाद नहीं हुई, कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई मैच्योर नहीं हुआ, वो एक पास्ट में फंसे हुए हैं. वो भाई जो है वो, उसकी औलाद नहीं हो सकती. वो आई एम जस्ट लुकिंग एट द पेरेंट्स ने कितनी उम्मीदें लगाई थी कि हम ये बिहेव करेंगे तो ये होगा, राइट? हम्म. didn't happen. या It's fascinating, and it's because those people are walking in circles around the same, अपनी जो वो क्या कहते हैं, ईगो की प्रस्तिश कर रहे हैं, right? They're walking in circles around it again and again and again. So I mean, brilliant writing from Imran And Nazir. also, do you notice something, Sadaf, that when parents, men like fathers, like जो जहारा का जो बाप था, ये बाप अपनी बेटियों को स्क्वॉश कर करके, दबा दबा के समझते हैं कि हम अपने बेटे को अगर वो करेंगे तो कल को, जो वही आपकी वाली बात कि हमारा बेटा हमको कल आके ये देगा, ये वो करेगा. Yeah. ये इतने ब्लाइंड कैसे हो जाते हैं?
इनको नजर नहीं आता कि इनका बेटा No, साइकोपैथ है। I am not even gonna try to understand their psychology. Maybe we should, but I've seen it, and those, I think I spoke about it last time. I've seen two or three people like this. So the children, the men have literally abandoned them. Right? हम्म। इतने वो लाड करती थी ना अपने हम्म। को, और उनको वो तरजीह इज द राइट तरजीह या राइट प्रायोरिटी, हाँ। हम्म। प्रायोरिटी देती थी, तो चाइल्ड इज ना, द वन मीट्स हर वंस अ ईयर, दैट्स इट। वाओ। क्योंकि उन्हें पता होता है कि दैट क्लिंगीनेस, दे डोंट वांट दैट क्लिंगीनेस, वो तंग हो हम्म। पड़े होते हैं। बट going back to Muamma, I'd say Imran Nazir, amazing writing, and I love the way Ali Ansari has flipped, right? But dude, that ladai, before we go on, talk to me about that ladai हम्म। that Moshe Abbasi and बेस्ट Ali सीन। Ansari have, हाँ। right? एक के भाई शी सेज, मुझे नूशा अब्बासी का कैरेक्टर इतना मजे का लगता है बिकॉज इट्स सो फीमेल, हम्म। राइट? शी इज इन लव, शी इज, लेकिन जुबान नहीं उसकी रुकती। तुम्हारी माँ जो है ना, ये आई मीन लाइक लिटरली शी कॉल्ड हिज मदर, कि अभी शादी के बाद टाइम मार रही है, एंड शी एक्सपेक्टेड टू बी फॉरगिवन। तो हाँ। मेरे माँ बाप को कुछ कहोगे, बट शी इज सेइंग ऑल दिस स्टफ टू हिज एंड द पेरेंट्स। मदर्स आर सिस्टर्स बाय द वे, द यस, मायरा एंड जुनैद की मदर्स आर सिस्टर्स। जलन वाली स्टोरी है ये, जलन के जलन गर्ल्स हैव ग्रोन अप। यार, आई थॉट दैट Oh, by फाइट the वाज way, did you notice the parallels? ऑफ। Right? Parallel के देखो, वो मायरा की जो मदर हाँ, है। आई एम सॉरी, जो जीजी करती है, हम्म। राइट? शी हम्म। सेज, मायरा को कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितनी मीठी आवाज से, राइट? हम्म। एंड तुम्हें उसको माफ कर देना चाहिए, दिस इज बिफोर द डिवोर्स ऑब्वियसली। हम्म। एंड देन सेम टाइम शी स्विचेस द फोन एंड शी सेज टू शाहजहां, तुम्हें कभी नहीं मैं माफ करूंगी। हाँ, 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 यही तो है। भाई, तो सारा ड्रामा ही उसके जहां आरा का ट्रॉमा है ना, देखें। वो बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली आपने रेस किया, एंड आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट। व्हेन यू लुक एट अ कैरेक्टर लाइक जहां आरा, व्हाट हु इज शी इज अ वुमन रॉन्ग्ड। जब ऐसे लोग अपने ट्रॉमा से डील नहीं कर पाते तो वो एक न्यूक्लियर फिजन की तरह बन जाते हैं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह बन जाते हैं, जो जो शर्नोबल या हिरोशिमा नागासाकी की तरह हो जाता है, जो हर तरफ रेडिएशन फैलाते हैं और रेडिएशन और डैमेज फैलाता डैमेज फैलाते हैं। है। लोगों के बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, मुंह पे बर्न्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है? बिकॉज एक बंदी का ट्रॉमा जो है ना, वो अन 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 अनब्रिडल्ड है। ठीक है, हम्म, अगर आप लोगों में से कोई हैरी पॉटर फैन हो तो फैंटास्टिक बीस्ट का जो सीक्वल आया था, जिसमें एक वो जो लड़का था, वो जो एक्चुअल विलन बनता था एंड में, उसका क्या होता है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा वो करते करते वो एक सुपर पावर बन के वो सबको बर्बाद करने वाला एक पावर बन जाता है। इस ड्रामे में जब हम शाहजहां का वो जहांआरा का कैरेक्टर देखते हैं तो क्या है, आपने वो जो वो बार बार वो पैरेलल्स ड्रॉ करता है, वो खूबसूरती से अपने आप को देख रही होती है, उसको ट्रॉमा याद आता है। वो बच्चों के बारे में याद करती है, उसको अपना ट्रॉमा याद आता है कि मैं तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, मैं गिर गई थी तो ये हुआ था तो वो हुआ था। जब वो दोनों की रिलेशनशिप में वो कहती देखती है ना कि ये दरार पड़ रही है, दरार पड़ रही है, तो वो वही उसको याद आता है कि मुझे एक मर्द से बिट्रेयल मिला, इस लड़की को भी मिल रहा है, इसको क्यों नहीं समझ में आ रही कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसे मर्द के साथ शादी करने की। और फिर जब वो क्वाइटली भी जब उसको देख रही होती है ना, जुनेद के कैरेक्टर को, ओ माय गॉड व्हाट अ ग्रेट एक्सप्रेशन सबा कमर हैज एट दैट पॉइंट। वो जब यूं उसको देख रही होती है, कहती है, यार ये कितना घटिया आदमी है, इसकी बीवी के साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ, ये यहाँ मुझे प्रपोज कर रहा है खड़े होके, बदतमीज वाहियात आदमी। तो वो सारी जो उसकी हेट्रेड और जो उसकी जो वो क्या है, मिसोजिनी का जो ऑपोजिट क्या है, मिसैंड्री। मिसैंड्री। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो वो मिसैंड्री जो उसकी है ना, वो डेवलप कहाँ से हुई है, वो एक एक पॉइंट पे Oh, मम्मा you आपको बताता है। understand वो ये या this is the drama is that आप completely, जैसे आपको, अब मैंने पता नहीं किससे मैं बात कर रही थी, someone who is not that much, इतनी वो intellectual dramas नहीं देखते, तो उन्होंने कहा अरे मैं तो वो ड्रामा देख रही हूँ। मैंने कहा कौन सा? तो कहती है वो जिसमें वो बदतमीज औरत जो है वो लोगों की तलाकें कराती है, हम्म। बट she didn't say a bad word, she said बदतमीज, right? And then हम्म। when I talked to her, she goes, you can understand वाई शी why डज
हाँ हाँ। She is the devil, isn't she? Because she whispers. She doesn't force anyone to do anything. She just हम्म whispers in their ear. तो लोग हम्म। खुद अपनी ख्वाहिशों को फॉलो करते हैं ना। हाँ, और मुझे ये अच्छी बात भी ये लगी है कि जब वो जहारा के वो शाहजहां के सामने आती है तो वो प्रीन करती है, वहां पे हम्म। आके उसके सामने झूठ बोलती है, मेरे बच्चे ये और वो तो आ जाएंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक दैट दैट ऑल्सो शोज Very दैट painful to watch, so वेरी wasn't it? पेनफुल, वेरी सैड। इट वॉज अ ट्रेजिक सीन। एंड मुझे अच्छी बात उस ड्रामे में ये, इस ड्रामे में मुसलसल ये लगती है कि वो एक मिनट के लिए भी आपको देख के ये नहीं होता, जहारा को देख के, कि मैं इसकी जैसी ना हो जाऊं, मैं इसकी जैसी हो जाऊं, मैं इसकी तरह बन जाऊं। मुझे उसकी हर चीज को देख के ना सैडनेस और पिटी फील होती है। और दैट इज द डिजायर्ड आउटकम ऑफ शोइंग अ कैरेक्टर लाइक दैट। आप जब किसी एथिकल जो कंपस है वो सही है। सही है, राइट। ड्रामे का लिखने वाले का सही है, बनाने वाले का सही है, ड्रामा अदा करने वाले का सही है। क्योंकि क्या होता है जब आप फेम फटाल कोई बनाते हैं या जब आप कोई ऐसा कैरेक्टर हॉलीवुड में भी जब आप देखते हैं, आप कभी भी ये नहीं कहते कि यार मैं भी ऐसा हो जाऊं। आप हाँ कहते हो जी। नहीं यार, कि कितनी मुसीबत से यहाँ आई है, मैं तो सिर्फ इसकी स्टोरी देख के एंजॉय ही कर सकती हूँ। आई वुड नेवर वांट टू बी इन हर शूज। राइट, that's exactly, there's no swagger to it, ब्यूटीफुल वो स्टाइल वो सब हाँ कुछ वो सब है। लेकिन एकदम होता है कि इस हाँ दर्द से हम क्यों गुजरे। हाँ, राइट, हम क्यों तुम्हारा भी। गुजरे। और वो जो उसकी आंखें हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव है, शी लाइक अ लाइक अ फ्लेम, एंड लाइक जुनेद टाइप्स आर लाइक मॉथ्स टू इट। बट हम्म। एट द एंड ऑफ इट इट्स फायर। एंड द ड्रामा कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स यू ऑफ दैट कि ये एक आग है, इसमें भस्म होने के लिए ना आपको खुद एक बहुत बड़ा चमूना होना चाहिए। Yeah, I'm telling you, I don't feel, I feel bad for Anusha, but I feel bad because आई I डोंट think, फील बैड फॉर बोथ ऑफ देम। आई थिंक देर maybe I बोथ। do. I think Anusha was given spectacularly bad advice from her mother, right? I think इस टाइप की माएं दुनिया की, they are the problem. Why did you need to tell these things to your daughter? जिस घर वो जा रही है, right? Why did you do all of नो this? बट देर Why do you रिलेटिव्स। have to live her life for नो her? नो 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 Right? नो नो नो, ये सब ये बातें निकल आती हैं, ये बातें बताई जाती भी शायद फैमिलीज में जब इस तरह होता है तो पता ही होता है ना, बचपन से पड़े बड़े होते हैं घरों में, ये डिस्कशंस होती हैं शादियों पे, खानदानों में, दावतों पे, ये सब बातें होती हैं, पता चल जाती हैं। आई डोंट रियली से दैट, बट आई डोंट लाइक देम बोथ। भाई वो जुनेद तो क्लियरली पता है कि वाई वी डोंट लाइक हिम, दैट्स Junaid क्लियर। is a terrible person, Oh साफ my जवाब। God. Oh my horrible man. And props to Ali Ansari because he's so cute. Ali Ansari is such a cute guy. Isn't he that typical, वो जो पाकिस्तानी एक लड़का हाँ होता हाँ है हाँ हाँ। पास क्लास का, वो बीवी अरेंज्ड मैरिज है, तो वो जो चूचू मुचू या थोड़ा बहुत बात करता है तो वो अनुषे के ज़हन में आ जाता है, ही लव्स मी, वो हम्म इंस्टाग्राम वाला लव है। वो माँ को भी छोड़ के आ गया। एंड रियली आई एम थिंकिंग, if you take a few steps back, right? If Anusha had sort of like thought about supporting her partner rather than listening to her mother, maybe Junaid wouldn't have strayed, or maybe he would. And I you know, don't know. there was a crucial detail which you just mentioned actually, which has made me thought about it. That did you notice that for both of them, Hmm. um, the cracks were there. She just deepened them. Jahara just Yeah. deepened them, right? And the cracks were coming from obviously Jahan, this Myra's family. मायरा की जो माँ है वो भी एक Hmm. टॉक्सिक पागल औरत है, और जुनैद की माँ भी एक टॉक्सिक पागल औरत है। तो दोनों की फैमिलीज अपने बच्चों को पुश करे जा रही हैं, उनको वो अदर से कान भरती है, ये तो नहीं हो Why, सकती। I have a feeling that there was another layer to it. Have हम्म you noticed that Junaid की माँ क्यों आई थी? Why हम्म did she come to visit them? हम तुम्हारे घर में, हम्म। because वो उसका, I think it was for the father. या मैं लड़के आ गई हूँ, मैंने उनको बता दिया मैंने घर छोड़ दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो उसका अनुश अब्बासी का फादर जो था ना, उनकी अफेयर रही होती है ना पहले। वो बाद हम्म। में भी पैगाम रहती है, व्हेन ही हैज द स्ट्रोक तो वो उसे देखने आती है ना, द वे शी सिटिंग देयर, और उसका हस्बैंड साथ नहीं है तो कह रही है, देखी जा रही है अनुश अब्बासी के। पॉसिबल, पॉसिबल। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये भी था ना कि देखें, दोनों लड़का लड़की ने एक दूसरे की नीड्स नहीं समझी। उस हम्म। लड़के की नीड ये थी कि तुम मेरे खाना अच्छा बनाओ, मेरे कपड़े सीधे करो, ये करो। और उस लड़की की नीड ये थी कि तुम मेरे साथ मुझे बाहर लेके जाओ, मेरे से बातें करो, जो कि होती हैं बड़ी टिपिकल, दोनों की नीड्स दिखाई हैं एज अ मैन एंड वुमन। But nothing extraordinary. He Nothing extra, wasn't asking her. normal expectations as a man or a woman would Right. have in there। I mean, he And wasn't asking her to work, या तुम ये no, करो no, या no, वो not at करो। all। And he वो जिस even तरह agreed.
वो जिस तरह खाने की तारीफें करता है ना, उससे आपको वो आपने अगर याद तो हो तो उसमें नशे डालती है वो तो। तो नशे डालती है, लेकिन खाना मजे का भी होता है, वो पहले भी लोगों ने हमने देखा है, और वो एक एस्टैब्लिश मोटिव है इस ड्रामे में कि खाना बड़ा अच्छा आता है इनके घर से। तो वो जो खाना आता है ना, उस वो खाना एक सिंबल है घरदारी का। औरत क्या होती है, औरत खूबसूरत होती है, औरत हसीन होती है, औरत खाना बेहतरीन बनाती है, घर कितने सलीके से रखा हुआ होता है औरत ने। जुनैद इस चीज को, वही वाली बात जो आपने पैसे के हवाले से कही थी ना, मुझे लगता है कि जुनैद को औरत का वो परफेक्ट मुजस्समा जो है वो जहांरा में दिख रहा है। अब वो उससे अपनी बीवी को कंपैरिजन करता है कि ये तो फूहड़ है, ये तो है। मर्द ये भूल जाता है कि इट्स नॉट अबाउट बीवी फूहड़ है, इट्स नॉट अबाउट बीवी तुम्हें क्या देती है खाने में, या तुम्हारे कपड़े पे इस्त्री करती है या नहीं। वो जो जुमला उसको कहती है ना कि तुम रीजन ढूंढ रहे हो मुझसे लड़ाई करने के, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, तुम्हें ये बात है पढ़ना, यही चीज तुम्हें पहले तो बुरी बुरी नहीं लगती थी। तो ये जब मर्द के दिल में ये चीज आ जाए ना कि मुझे ये औरत नहीं पसंद, बस बस। लेकिन she made herself into a bitter tablet by listening to her mother. I feel that way. देखो ना, if somebody who is completely, जो जुनैद के जो expectations थे, I think this is one of the great things about good writing. It invites debate. हम्म। वो कैरेक्टर्स आपके दिल और दिमाग पे छाते हैं और आप सोचते हो, अच्छा अगर वो ये ना करती, अगर ये ना होता वो। सो आई एम गोइंग टू गिव प्रॉप्स टू इमरान नजीर, बट ऑल्सो टू हमारे एक्टर्स एंड द डायरेक्टर. ओ यस। Kept this show tight, Tight right? and very very together, very Hmm. consistent, and pulling in the twists at the right time, क्योंकि अभी इस वाली एपिसोड में मैं लगा था कि यार अब ये ड्रैग ना करें इसको, और वो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने वो ट्विस्ट लेकर आया जिसमें अली अंसारी का कैरेक्टर कहता है मैं तो तुमसे शादी भी करूंगा, और मैं तो अच्छा यार, वैसे मुझे मर्दों की एक साइकी समझ में नहीं आती भाई, यू आर सेइंग दिस विद सो मच हेट्रेड, मैं तो तुमसे शादी भी करूंगा। ओ भाई, ओ भाई, यू व्हाट इज दिस, सम रिवेंज कि मैं तुमसे शादी भी You get करूंगा? acid attacks and things like this, right? So I think, मुझे that feeling, I think a lot of men hate it. तुमने मुझे फूल बनाया. You made me a fool, right? हाँ तो हाँ वो and औरत, right? हाँ, You ये made a वाकई। fool of me. हाँ, हाउ डेयर यू। I'm going to tell you something, na. हाँ, So, मैं बताता हूँ तुम्हें। anyway, I will say thank you for this drama, because देखो, it very cleverly it has taken all the typical elements that mass audience loves, and then given it a very dark twist. वेरी And I wish we इंटेलिजेंट could go ट्विस्ट। darker. Yes. Yeah, and it's very intelligent. And I saw so many reels where Hmm. people are saying कि भाई who is watching this drama and why are people not watching this drama? जो नहीं देख रहा है Really. please ये देखो. So very well done. Best drama, best thing on the air right now. And now we quickly want to just quickly discuss couple of dramas जो के आ रहे हैं, जिसमें खैर नीली कोठी और शरपसंद मैं देख रही हूँ। सदफ नीली कोठी, I don't know if you've caught or not. I thought it's still, yeah, it's still ridiculous. It's still fun. मैं तो देख रही हूँ, मुझे तो मजे का लग रहा है। Fun, fun and ridiculous. I फन think एंड there's not a ब्रेनलेस। lot to say about कपड़े it, दे ना. दो मुझे अनमोल बलोच के सारे कपड़े, वार्डरोब प्लीज पुट इट मुझे ऑन। पूरे नहीं आएंगे, वरना मैं जाके ना हाँ नहीं, चोरी छापा हम मार. कस्टमाइज कराएंगे पूरे, मुझे भी नहीं आएंगे वो इतनी नहीं, स्किनी। I need Anmol Baloch's figure as well, right? वो नहीं So, मिलने वाला सदफ, वो टू लेट फॉर दैट, बट खूबसूरत लड़की बहुत है और खूबसूरत वो लग रही हैं। तला चहूर लुक्स लाइक अलादीन फ्रॉम अलादीन, एंड बहुत अच्छा लग रहा है तला भी। अनमोल इतनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा ड्रामा है, मजे का है, कुछ भी हो रहा है। कैंडी बॉक्स है वो Candy, ना. candy, chewing gum. It's chewing gum. I love it. And then it's like a, I wouldn't say like a decadent dessert, because it's not like, it's not Oh, something. no, no. No, no, it's, Wholesome. I'd say it's हाँ, it's wholesome. very wholesome. Yes, it's like a Yeah. chocolate chip cookie made with all the healthy ingredients. So it's a very sweet, sweet, sweet drama. I don't understand why people hate on Tala Choor. I don't get it. Okay, can we get to our kind of like the crazy drama? This is that started this week was Ishq Before Tere Sadke. इश्क में तेरे सदके पे मैं आऊंगी, मैं सिर्फ एक चीज पॉइंट करना चाहती हूँ शरपसंद के बारे में, कि हरीम फारूक के कैरेक्टर ने फिदा को थप्पड़ मारा है। ब्रो वाई, ब्रो वाई, you've lost the plot, bro, no. Now this girl, I don't like this girl anymore, because you cannot abuse anybody, whether it's a man or a woman. चमाटे वमाटे वाला सीन नहीं हो रहा बॉस, मैं ये ओके नहीं कर सकती, तो आई एम नॉट रूटिंग फॉर हरीम्स कैरेक्टर एनी मोर। भाड़ में जाए। और दूसरा ये कि ऑल्दो शी इज बेचारी डूइंग सो वेल, शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस, एंड हिरा मानी ऑल्सो डूइंग फैबुलसली इन द ड्रामा। अफान वहीद बहुत अमेजिंग। अच्छे लिखे हैं ना. लेट अस एक्सेप्ट कि भाई वो जंजीर का ड्रामा है ना. सो आई सारा बिलीव नो, रोल्स सारा आर वेरी सादेन गुड. शाह,
सारा सादेन शाह ने लिखा है। नाइसली रिटन। आई थिंक राधेंचा की बहन है वो। और जो है वो उन्होंने है ना, कुछ बहन के पास बिठाए उन्हें बहुत, थोड़ी देर के सदफ, लिए। दिस इज अ ड्रामा जिसके एथिक्स बिल्कुल वाटर टाइट हैं। हम्म, बहुत जबरदस्त एथिक्स हैं, सिवाय इस चीज के कि उसने चमाटी मार दिया उठा के। आ, बहुत अच्छे एथिक्स हैं, बहुत अच्छा ड्रामा लिखा हुआ है। बहुत सुकून से सोच के किसी ने लिखा है कि यार मुझे इस बंदे को क्या दिखाना है। बहुत टाइम लगा लिया है, ड्रैग्ड फॉर अ बिट, बट स्टिल आई थिंक, एंड ऑब्वियसली नुमान एजाज इज ब्रिलियंट एज फरासत। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज वेरी क्लासिक कैरेक्टर्स दैट ही इज डन। आई लव दैट इट्स नाउ कमिंग टू अ पॉइंट वेयर karma is now about to hit him back, though I feel it's a bit, यार मतलब उस नहीं, दूसरी बेचारी का क्या कसूर है, जो वो दूसरी बच्ची है उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अच्छी बच्ची थी जो फरासत की दूसरी बच्ची होती है। बट खैर लेट्स सी, बिकॉज आई थिंक इट्स नाउ कमिंग टू एन एंड, 3-4 एपिसोड्स में खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी इश्क में तेरे सदके के ऊपर। ओके सो पहले तो जल्दी से ऑडियंस को बता दें कि ड्रामे में हो क्या रहा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं जल्दी से रिकैप कर दें। मुझे हंसी आ रही है बताते हुए। एनीवे, अच्छा, go ahead, tell them the story of it first, go. तो स्टोरी में गाइस हंसना मना है, हंसना नहीं है किसी ने। एक लड़कियां, अच्छा अब्बा जी की स्टोरी अभी पता चली है, 8वीं 9वीं एपिसोड हो गई। तो फरहान अली आगा इज प्लेइंग द गर्ल्स फादर्स, जो माई फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, माई लीड अनिका जुल्फिकार इज प्लेइंग 2 गर्ल्स, ट्विन डबल रोल है। अब्बा जी के जो एक दोस्त होते हैं ना, उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे होते, तो अब्बा जी के होते हैं ट्विंस बेटियां। अब्बा जी अम्मा को बगैर बताए ट्विन उठा के अपनी दोस्त को दे देते हैं कि चलो जी। अपा जी इसी टाइप के हैं। अब्बा जी इस टाइप के हैं, अब्बा जी विलन है, असल विलन अब्बा जी हैं इस कहानी के, सही है। अच्छा चलें जी, अब वो जिस घर में जाती हैं वो बड़ी अच्छी पली बढ़ती हैं। उनकी मुनीब बट एक साइको क्रेजी साइको पुकी होते हैं वो भी एक, तो साइको पुकी से उनकी शादी हो जाती है। फिर ये प्रेग्नेंट होती हैं, साइको पुकी पागल और साइको पुकी हो जाते हैं, पुकी नहीं हो जाते वो साइको हो जाते हैं पूरे। और बेगम साहिबा के, साइको पुकी के एक राइवल्स होते हैं जो साइको पुकी की वाइफ को मरवा देते हैं, वाइफ प्रेग्नेंट भी होती हैं, तो साइको पुकी अब पूरे साइको हो जाते हैं। और फादर इज डन इट राइट, वो जो हाँ वो जो मुनीब क्रेजी, भट्ट का फादर, क्या उसका जुल्फिकार शाह होता है ना हाँ मुनीब। महमूद असलम का जो कैरेक्टर होता है जी बिल्कुल। और जो ये होती हैं दूसरी तरफ, जो सिंड्रेला स्टोरी होती है, ये एक स्टेप मॉम और 2 इविल स्टेप सिस्टर्स के साथ जी रही होती हैं, जिनकी लाइफ, जिनमें वो अपनी जबान इस्तेमाल करती हैं लेकिन बड़ी रैंडम चेरी पिकिंग मोमेंट्स पे जबान इस्तेमाल करती हैं, कहीं चुप रहती हैं कहीं बोल पड़ती हैं। सबा फैसल उनकी एक बहुत काइंड फुप्पो प्ले कर रही हैं, और आयशा गुल जो है वो अनिका जुल्फिकार की इविल स्टेप मदर प्ले कर रही हैं। फरहान अली आगा इज डूइंग, Brilliant, I love her. आयशा गुल ओह, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती है। ओह ऐसे माय इवन गॉड, इट्स सो इरिटेटिंग, जैसे वो but नाखूनों के nails on ऊपर chalkboard, nails on, but Sadaf, the biggest nail on the chalkboard is still Farhan Ali Agha's character. What is this dude, यार? असल ये में ना को- वो बटरफ्लाई और कॉकरोच वाला प्रिंसिपल है। फरहान अली आगा की शक्ल इतनी अच्छी है, वही बकौल आगे आप शक्ल उनसे वाला बड़ी है। उम्मीदें लगा देती, इतनी हाँ, अच्छा विलन नहीं हो मुझे सकता। नहीं चले, किसी को भी ले लेते आप, मैं तो कहती हूँ किसी को भी ले लेते। शफकत चीमा भी होते हैं अब्बा जी। मैं कहती हूँ बेचारे शफकत चीमा को मैं बिला वजह क्यों तंग करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे ये आप बताएं कि ये अब्बा कित्थों लब्बा, मुझे बताओ जरा, ये किधर से आया है अब्बा जो ऐसा डोनेटिंग चिल्ड्रन। व्हाट इज ही डूइंग? अच्छा वो जो बच्ची रख ली है, मैं तो कहती भाई उसे भी डोनेट कर देता, तूने उसके साथ जो की है ना, जो की है तूने। अच्छा और बैठ के ना रात में आके उससे मोनोलॉग करता है है क्यों अब्बा जी ऐसे क्यों करते हैं आप? अच्छा, द मोस्ट रिडिकुलस थिंग इज दैट दिस गर्ल, जो कि हमारी सिंड्रेला बची है हमारी, कभी इसका दिल चाहता है तो ये बोलती है, कभी इसका दिल चाहता है तो ये नहीं बोलती है। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आगे क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अली अब्बास का भी कैरेक्टर है, अली अब्बास भी एक, Okay, so I believe he is the villain, Yes. and he is the one of the reasons I was not going to watch this drama. Okay, I was not, because it's over the top with black and white characterizations, cartoonish at times. और मुनीम भट्ट is playing that same old role जिसमें एकदम गुस्से में आ जाता है, और लोगों को पकड़ पकड़ के मारे. I think they have a wrestling or boxing match in the हम्म beginning now. So हम्म I wasn't going to watch it, and then I saw, क्या उनका नाम है, वसीम अब्बास के बेटे का अली क्या, अब्बास, Ali Abbas का character, and I thought, thank you, because they showed that this guy is entitled. He's terrible. He prefers a different kind of woman, and he went away to boarding school. He's a very entitled elitia, which हम्म is exactly what Bilal Abbas's character should be. हम्म Right? He's completely toxic. Lekin the mother is pushing Faryal Bichari
नॉट फरियाल, व्हाट इज द गर्ल्स नेम, जो नूर, एक हम्म। तो हूर है ना, तो नूर को जो है ना, शी इज पुशिंग टू मैरी हिम, एंड देन ऑल द अदर गर्ल्स इन द मिडिल क्लास फैमिली आर डेस्परेट के अमीर कजिन से वो शादी प्रिंस चार्मिंग है, वो प्रिंस कर, चार्मिंग है, हाँ। and he's a terrible, I think Ali Abbas is so brilliant in इट्स these सो roles. गुड, So अली please आवाज इज सो watch गुड। the women, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, you know. And the way I should not be laughing, but like this girl who's like, "Oh, you are black. You were blackmailing me. Now I'm blackmailing you," and he's like, "अरे बेबी क्या हो गया है? मैं अभी आके तुम्हारी सारी तुम्हारी होंगी ना मसाइल, मैं तुम्हारे पैसे देता होगी." It He's made so me good. laugh. It made me laugh. It should not have made me laugh. He's a blackmailer, evil You person. think about, I mean, I'm so proud of our actors कि इस टाइप के रोल्स उनको मिलते हैं और उनमें से कुछ निकाल लेते हैं, हाँ। बना देते हैं, right? But this drama, by the way, I have to, by the way, also applaud Muni Bhatt. बेचारे ने बड़ी अरसे बाद we are seeing him on TV. He's a really good actor, underrated actor है बेचारा, and अच्छे रोल करता है, अच्छा एक्टर है, looks good. But वो बेचारे जैसे अली अंसारी के लिए I feel the same way. I feel the same way about Muni. But these are kids, these are boys who are good actors with good faces, but Yeah. they've been stuck in that purgatory जो भी आप कहना चाहें of पाकिस्तानी dramas. उनको ना वो वाली मिलती है, लेवल मिलता है जो वो फेम शायद डिजर्व करते हैं, और वो ना वो प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं। You and I say this, right? उनके ड्रामा सुपर हिट जा रहे होते हैं, हाँ, ये और भी है कई वैसे। बार जिन लोगों को ये हम भी है। कहते हैं ना बड़े थिएट्रिकल एक्टर्स हैं, हाँ, वो कहाँ होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते। फ्लॉप हो जाते हैं। हम्म। और वो So कुछ भी नहीं कर you रहे। say that. So हम्म। अभी ये देखो आस पास, आई हेटेड इट लास्ट ईयर, और वो बिलियन में चला गया उसके व्यूज, राइट? और वो हम्म। अनियत सारी और आई थिंक लाइबा खान लाइबा उनका, खान थी, जी जी लाइबा बिल्कुल, खान, लाइबा खान थी। अभी भी they- जो they हिरा खान look वाला good. ड्रामा है, मुझे नहीं Yeah. पता वो स्लीपर हिट हो सकता है, उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं आसपास वाले। तो बट एक्सप्रेस छोटा चैनल है, तो एक्सप्रेस बेचारे अपना चैनल ठीक से मार्केट करते हैं, उनकी उनकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं जो लगती अब मुझे। पब्लिक है वो सोचती नहीं है कि ये चैनल क्या है, वो सिर्फ सोचती है कि ड्रामा अच्छा मजे का हाँ, है। नहीं नहीं सदफ, आईपॉल्स नहीं है उस चैनल के पास जो होने चाहिए, मेरा ख्याल है। वो कभी कभी बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। I'm talking about, say, in Pakistan. I remember when I used to sit there and I used to say, अच्छा जियो लगाएं, ये लगाएं, तो उन्होंने कहना अच्छा कौन सा चैनल है, एंड शी जस्ट को क्लिक 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 क्लिक, अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है सदफ, हम्म। कितनी लड़की है। हाँ हाँ, नहीं ये है, लेकिन जो डिजिटली आजकल जो डोमिनेंस है ना, वो एक्सप्रेस की उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आई थिंक अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज उस पर काम करें। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर दिस फन चैट सदफ, एज यूजुअल। ग्रेट टू टॉक टू By यू the अबाउट। way, Anika Zulfikar, I like her. She's very शी इज cute. I नाइस। think she's doing a good job. I think she'll हम्म। get better, right? But I think she's good. And I like that one thing about this drama. देखो उन्होंने recognize किया है कि he has anger issues. यस। उन्होंने criticize नहीं किया या। कि I think वो will have his And he wife blames go, himself. He yes, blames himself for the death, and that's good. yes. Please continue blaming yourself. So I think that that's a really वही मैं बात कर रही हूँ ना कि सरप्राइजिंगली दिस ड्रामा हैज मोर मोरालिटी एंड एथिक्स इन इट्स प्लेस देन मेरी जिंदगी है तू। एंड आई एम ग्लैड दैट मेरी जिंदगी तू आई थिंक एक दो एपिसोड बाद एंड होने वाला है, बहुत ही कोई ठप तरीके से एंड कर रहे हैं ये। बट भाई देखते हैं हानिया आमिर क्या करती हैं आगे, नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट साइन करती हैं। ईद पे आ रही है आग लगे बस्ती में, और जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक रमजान रामों के और Oh, एपिसोड हो चुके। and Shan Shahid Bulla. बुल्ला इज कमिंग। एक दो और भी फिल्में हैं जो आ रही हैं। एनीवे, लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक। सदफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वेरी। Next week we'll try and review Ghulam Basha Sundari because it's actually turning out quite interesting in गुलाम a बादशाह very सुंदरी unique जी। way. Yeah, और it's आई a, थिंक दैट वी कैन ऑल्सो बाय नेक्स्ट वीक विल हैव मोर टू से अबाउट द रमजान ड्रामाज ऑल्सो। of course. या Yeah. सो अभी तो एक दो एपिसोड, और फिर वो फसाना मार्ट का भी आ जाएगा, तो तब तक बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू फॉलो सदफ ऑन हर सोशल मीडिया। अपने जान हाथ माल से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सदफ आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे अपना टाइम देती हैं। गाइज फॉलो सदफ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। खुदाफिज। Bye.